2047 के जो स्वर्णिम भारत का विजन है वो इन्हीं दीपों की तरह जगमगाए, ये हमारी शुभकामना है। इसके साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और दीप प्रज्वलन के बाद सभी अतिथियों से हमारा निवेदन है कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और इस खास मौके पर अब हम सभी का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं एबीपी नेटवर्क के सीईओ श्री सुमंतो दत्ता जी। कृपया तालियों के साथ मंच पर सर का स्वागत करें। Good morning, Honorable Minister Chirag Paswan ji, friends and colleagues. It's indeed a privilege to stand here and open a conversation that is really about the future of our country. When India became independent in 1947, entrepreneurship meant something very different from what it does today. It was really shaped by scarcity and necessity. Our early entrepreneurs put up textile mills, factories, banks, and institutions, not to chase scale, but to serve a nation finding its feet. They created jobs because India needed livelihoods. They created business because India needed confidence. 75 years later, we stand at another defining moment. India at 2047 will mark 100 years of our independence. But at this time, we will continue to be one of the youngest large economies of the world. Every year, millions of Indians, young Indians, will enter the workforce with ambition, energy, and expectations. A simple reality frames our challenge. For India to fully harness its demographic dividend, we need to create several million new jobs every year. And that needs to continue for the next 2 decades. That scale cannot be created and delivered by government or large corporations alone. It can only be built through entrepreneurship. What gives me confidence today is how entrepreneurship in India has evolved. It is no longer limited to large family businesses or metro cities. It is booming. It is happening in tier 2 and tier 3 cities and towns. It is being driven by first generation entrepreneurs. It spans fintech, healthcare, logistics, manufacturing, climate solutions, media, every aspect that touches our lives every day. These entrepreneurs are not just building companies, they're solving problems, real life problems. I often think of a young founder that I met a few years back. He grew up in a very small town and decided to build a logistics firm because the inefficiencies were costing his small family business money and business every day. He didn't talk about disruption. He just talked about dignity, jobs, and efficiency. That is the modern Indian entrepreneurship in one sentence: dignity, jobs, efficiency. This momentum is not accidental. Government initiatives like Startup India, Skill India, and the broader Viksit Bharat 2047 vision have helped create an ecosystem where starting a business is easier, skills are valued, and ambition encouraged. Digital public infrastructure such as the Aadhaar, UPI, and the India Stack has quietly but surely lowered the cost of entrepreneurship in a way few countries around the world have managed. These are global firsts and something that each one of us need to be very, very proud of, because this is enabling millions of small businesses to now participate in the formal economy because technology is making it possible. However, policy and platforms alone are not enough. As India moves towards 2047,
the quality of entrepreneurship will matter as much as the quantity. We must ask whether our enterprises are creating sustainable jobs, whether they are inclusive, and whether they are building long-term value rather than short-term headlines. India does not need a handful of large success stories. It needs millions of strong, ethical, resilient businesses across MSMEs, manufacturing, services, media, and technology across the length and breadth of our country, in every state, in every district, in every town and village. Together, we need to create almost 8 to 10 million new youth jobs annually to achieve our full employment by 2047 target. This is where institutions like ours, ABP, have a unique responsibility. Media has always played a role in shaping national narratives. Over the years, ABP has chronicled India's economic journey. We have tried our best to amplify entrepreneurial stories from across the country and given voice to ambition beyond the metros. As we look ahead, storytelling itself becomes an enabler of entrepreneurship. When young Indians see people like them build, fail, and build again, aspiration multiplies. If 1947 was about political freedom and 1991 was about economic liberalization, then 2047 must be about entrepreneurial empowerment, empowering youth, women, and first-generation founders to participate fully in India's growth story. The next 2 decades will define India. It will define the India that our children inherit. An India where opportunity is not limited by geography or background. An India that creates jobs at scale, innovation with purpose, and growth with dignity. An entrepreneurship guided by values and enabled by ecosystems will be at the heart of that India. Thank you. स्वागत संबोधन के लिए धन्यवाद सीईओ सर। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और मंच पर आमंत्रित करेंगे हम उन युवा नेता को जिनका इंडिया एट 2047 में बड़ा योगदान है और जो सपना देश देख रहा है उसमें उनकी और उनके मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। फूड प्रोसेसिंग वो सेक्टर है जो किसानों को सशक्त बना रहा है, आर्थिक तरक्की के रास्ते खोल रहा है और उद्योगों को मजबूत कर रहा है। ये वो सेक्टर है जहां पर इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं और इसके साथ ही साथ कई ऐसी चीजें हैं जो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने वाली हैं। तो मंच पर ससम्मान आमंत्रित करते हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी को और उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगी एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है मंच पर। थैंक यू अवधेश। आप सबको नमस्कार। चिराग पासवान हमारे साथ बैठे हैं। मोदी के हनुमान चिराग पासवान, ये सब तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आजकल चिराग पासवान नीतीश कुमार जी के खास शागिर्द भी बन गए हैं। अब ऐसा है कि सिर्फ 5 साल पहले नीतीश जी की सरकार हिलाने में लगे हुए थे चिराग पासवान, आजकल नीतीश जी की सरकार को सीमेंट की तरह मजबूती दे रहे हैं बिहार में। तो दिल में मोदी जी को बसाकर और हाथ में नीतीश जी का साथ थामकर चिराग नए अवतार में नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी एबीपी प्लेटफॉर्म पे चिराग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको बिहार चुनाव के रिजल्ट्स के बाद पहली बार मिल रही हूँ, तो नेचुरल है कि मैं बिहार से ही शुरू करने वाली हूँ। आपको ये अंदाजा तो मुझे भी इस मुलाकात का इंतजार था। मुझे क्योंकि पता प्रचार के दौरान कई सवाल मुझ पे उठाए गए थे, उनके जवाब लेकर आया हूँ। मौका दूंगी चिराग, आज मौका दूंगी आपको जो दिल में है दबा कर रखे हैं, आज कहिएगा जरूर। लेकिन शुरुआत इस बात से करना चाहूंगी कि इतनी बड़ी जीत आप लोगों की हुई, ये तो आपने भी नहीं सोची थी। अमित शाह जी ने भी 160 का ही आंकड़ा दिया था, चिराग ने भी ये नहीं सोचा था कि 200 पार हो जाएगा।
तो 10,000 का कमाल रहा है ये चिराग? आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं इस ऐतिहासिक जीत की ओर। एक बात जो मैंने शुरू से मानी और मैंने कही दैट ये 5 दलों का जो कॉम्बिनेशन था ये एक अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन था। द काइंड ऑफ अलायंस दैट वी हैड, 5 पांडव की तरह जो हम लोग कहते भी थे चुनाव प्रचार में कि हम लोग उतरे हैं, तो ये इन टर्म्स ऑफ समीकरण ये अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस था। मैं ये मानता था शुरू से कि इस अलायंस के सामने विपक्ष का ठहरना मुश्किल है, और मेरे पास कारण थे अपनी इस बात को मानने के। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2005 के बाद बिहार का जो एक बड़ा क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसका पूरी तरीके से सफाया हो गया है। जिस जंगल राज का हम लोग जिक्र करते थे वो 2005 में ही उस पार्टी को, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने परमानेंटली नकार दिया है। 2010 में हम लोगों ने इसको दोबारा देखा बिहार विधानसभा के चुनाव में कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलायंस को करारी शिकस्त हासिल हुई। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलायंस को एक जीवन दान मिला। जब 2015 में महागठबंधन बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ गठबंधन करके उन्होंने महागठबंधन की उन्होंने शुरुआत की। 2020 में इसका जिम्मेदार मैं अपने आप को मानूंगा कि जिस तरीके से एक एनडीए में बिखराव हुआ और मैंने अकेले चुनाव लड़ा, इन और दोनों नीतीश कुमार जी की सीटों को 43 पे ले आए चिराग। हाँ, तो अगर इस बात का इल्जाम मुझ पे लगता है तो इसका लाभ किसको हुआ? इसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल को हुआ। उनका जो अहंकार था कि हम बड़ी पार्टी बन गए हैं, हमारे ज्यादा विधायक हैं, गठबंधन हमारा ज्यादा मजबूत है, कतई नहीं। वो बिखरे हुए एनडीए का लाभ ले रहे थे। 2015 में भी बिखरा हुआ एनडीए था, 2020 में भी बिखरा हुआ एनडीए था। एक बार फिर एनडीए यूनाइटेड होकर आया और आपने परिणाम देखे, और ये ताकत है हमारे गठबंधन की। सो डेफिनेटली दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। 10,000 की जो योजना जिसका आपने जिक्र किया, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। सो आई थिंक कलेक्टिवली ऑल दीज रीजंस टुगेदर इस तरीके के परिणाम सामने आए। कलेक्टिव रीजंस आप कहते हैं चिराग। देखिए पिछली बार एक विधायक वो भी बेचारा चुरा लिया गया था आपसे, तो 0 विधायक पे खड़े थे चिराग पासवान। 1 से आपने लड़ाई लड़ी कि मुझे 29 सीट दो और 19 लेकर आए। 1 से 19 का सफर चिराग बड़ा सफर है। आपके ही पार्टी के कुछ लोग, आपके अलायंस दल के कुछ लोगों ने जब आपको 29 सीट दी गई थी तो उस दिन हमसे भी कहा था और मीडिया में भी कहा था कि क्या ये 100% स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहा है चिराग। उनको आप क्या जवाब देंगे? 1 से 19 तक लेकर आ गए आप चिराग पासवान। मैं मानता हूं जवाब जब आपका काम देता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैंने इस बात पे विश्वास भी किया है। तभी जितनी बार मुझ पे आरोप लगते हैं, उंगलियां उठती हैं, कई बातें मेरे बारे में कही जाती हैं, इन तमाम चीज़ों को खामोश रहकर सिर्फ मैं इंतज़ार करता हूँ सही समय का कि भाई मेरा प्रदर्शन ही इन तमाम सवालों का जवाब दे। बट हाँ, मेरे लिए ये बड़ी बात है गठबंधन में, एंड आई कांट थैंक माई अलायंस इनफ, आई कांट थैंक माई प्राइम मिनिस्टर इनफ, ये विश्वास रखना कि एक सिंगल सांसद में इतनी ताकत है, इतनी हैसियत है कि वो 5 सांसद जिता के ला सकता है और उसको 5 सीटें दे दी जाती है। गठबंधन राजनीति जब से शुरू हुई है तब से जो मेरा अनुभव रहा, बिकॉज वी बीन द पार्ट ऑफ मेनी अलायंसेस, जो मेरा अनुभव रहा है, आपको कम किया जाता है। 10 वाले को 5, 5 वाले को 3, 3 वाले को 2, मर्जर के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। पर ऐसे में एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दे देना चुनाव लड़ने के लिए, मैं जीत के लाया वो सेकेंडरी, बट ये विश्वास होना कि ये जिता सकता है। ऐसे ही सिंगल तो क्या ही मैं बोलूं, 0 विधायक वाला, क्योंकि वो जो जीते थे वो भी चले गए थे, तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना जी। एंड उसमें से भी मेघा जी, आई वांट टू हाईलाइट दिस, उस 29 सीटों में से, क्योंकि चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा उठा था, उस वक्त मैंने ज्यादा इस पर चर्चा नहीं की थी, 29 में से 26 हारी हुई सीटें थी जी। कई ऐसी सीटें हैं ओबरा जैसी जहां पे एनडीए कभी जीता ही नहीं है। जी बिल्कुल। कितनी ऐसी सीटें हैं जो पिछले 1 दशक से, 1.5 दशक से, 15 साल, 20 साल से एनडीए कभी उस पे जीत नहीं सवाल पाई। मैंने आपसे पूछा था चिराग, दीज आर वेरी डिफिकल्ट सीट्स एंड यू सेड तब भी मैं 20 लेकर आऊंगा। एग्जैक्टली, यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। सो उस वक्त भी मुझे इस बात का विश्वास था। तो 19 में से ना सिर्फ 3 जीती हुई सीटें मैंने गठबंधन को वापस की हैं, बल्कि 16 ऐसी सीटें उनको वापस जीत कर दी हैं जो एनडीए गठबंधन अभी तक नहीं जीत पा रहा था। अब चिराग ऐसा है कि 19 विधायक के साथ
क्या चिराग ने ये सोचा था या कोशिश की थी या वहां लड़ाई लड़ी अंदर में कि मुझे उप मुख्यमंत्री दो? क्योंकि कुछ विश्लेषक है वहां पर वो ये कह रहे थे कि चिराग का तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। उसका ये प्लान था कि भाई सीटों थोड़ी टाइट हो जाएंगी, सीट चिराग अपने सीटों को लेकर किंग मेकर बनेंगे, फिर जो मन में आएगा डिमांड वो टेबल पे रखेंगे और मनवाएंगे। ये हुआ नहीं। ऐसी प्रचंड जीत हुई कि चिराग के नंबर रहे या ना रहे उससे खास फर्क पड़ा नहीं। कितना मैं लालची और हो सकता हूँ, आप बताइए। बिना मांगे आप जब बताएंगे आप इतना कितने लालची हैं। बिना मांगे जब इतना मिल रहा है, इसके बाद भी अगर मैं मांगी कि लालच नहीं? रखूं। उप मुख्यमंत्री की पद मांगी कि नहीं मांगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ना, मैं परिणामों से पहले इस तरीके की ना मैं चर्चा करता हूँ, ना मैं मांगे सामने रखता हूँ। मैंने कई दलों का हर्ष बुरा होते हुए देखा है जिन्होंने इन मांगों के लिए अपनी पार्टी की तिलांजलि तक करने में वो लोग हिचकिचाए नहीं। जहां मांग पहले ये रहती थी कि हमें उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, जबकि गठबंधन का प्रदर्शन ऐसा रहा। किसकी बात तो ऐसे में मैं सैनी साहब की बात कर रहा हूं, जिस तरीके से बिहार में उन्होंने गठबंधन के लिए शर्त ये रखी कि भाई पहले मुझे आप उप मुख्यमंत्री घोषित करें, ये गलत सोच है। पहले गठबंधन पे आप ध्यान दीजिए, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहेगा तभी आप कुछ मांगने की हैसियत में रहेंगे। अगर गठबंधन ही आपका धराशायी हो जाएगा तो क्या मायने रहेंगे आपकी मांगों के। तो मैंने कभी भी इन मांगों को ना रखा, ना रखने की सोच रखी। बट हाँ, परिणामों के बाद जिस तरीके से प्रचंड जीत हम लोग की हुई और एक ऐतिहासिक जीत हुई है जो ईमानदारी से कोई भी नहीं मान रहा था। यू आर राइट व्हेन यू से दिस। हम लोग भी जो चुनाव भी लड़ रहे थे, हम लोग को भी इस जीत का अंदाजा नहीं था। 70, 100, 170, 75 तक हम लोग जाएंगे, ये मैं मान रहा था। बट वी गोना क्रॉस 200। ये अपने में एक बहुत बड़ी जीत थी। बट हाँ, ना मैंने ऐसी कोई शर्त रखी थी उप मुख्यमंत्री की, ना मैंने बाद में कोई ऐसी इच्छा रखी कि हाँ, मगर अगर मामला टाइट होता तो चिराग जरूर रखते। चिराग जिस तरीके से बार्गेन करते हैं पूरे देश ने देखा है, पर वो मौका ही नहीं लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिराग, ऐसा है खुद ही सवाल खुद ही जवाब क्योंकि आप देंगे नहीं ना। अब मेरी एक जानकारी, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है, पहले तो आप कंफर्म करें कि मैं सही कह रही हूं या नहीं, फिर सवाल उस पर पूछूंगी। ऐसा है कि कुछ 10 दिन पहले 10 जनपद पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी थे, कृष्णा अल्लावरू थे, जिसमें कि दीपांकर भट्टाचार्य थे और भी लोग थे। और ये बातचीत उस मीटिंग में हुई है कि किसी भी तरीके से बीजेपी और आरजेडी को छोड़कर बाकी जितने दल हैं बिहार में उन सबको एक साथ लाने की कोशिश की जाए। नीतीश कुमार जी को 5 साल निर्विरोध बता दीजिए, अश्योर करिए कि वही सीएम रहेंगे, क्योंकि अभी तो कैसा बना हुआ है संकट उनके ऊपर। और चिराग इस पूरी सरकार की सीढ़ी बनेगा। लेट्स रीच आउट टू चिराग। तो क्या कोई रीचिंग आउट हुई है कांग्रेस की तरफ से आपको? सच सच बोलिएगा। चिराग, ये मीटिंग हुई है, मुझे तो पता है, अब आप बोलो, आपको जो बोलना है। देखिए लाइव ऑडियंस है, लाइव टीवी है, अब आप सोच समझ के बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सच बोलिएगा। देखिए वो मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है। डिनाई कर दिया आपने। खूब पता है आपको कि ये मीटिंग हुई है। मैं इतना जानता हूं कि हर वो व्यक्ति जो चिराग को जानता है या चिराग पासवान की कार्यशैली को जानता है, वो ऐसा साहस नहीं कर पाएगा। Everybody knows that how much I love my Prime Minister and they know कि वो मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। और इसीलिए मैं इस गठबंधन में इतनी मजबूती से हर परिस्थिति में खड़ा रहा हूँ। भले वो 2020 में गठबंधन से अलग भी हुआ, तब भी मैं वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया। इन 2020 I had this option, right, to get in an alliance with महागठबंधन या यूपीए या जो भी टर्मिनोलॉजी इनकी है, तो मैं उनके साथ में उस वक्त भी मैं जा सकता था। पर मेरा समर्पण, मेरा प्यार मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना है कि मैंने तब भी अकेले चुनाव लड़ा, जो भी परिणाम रहे हों, पर मैं तब भी वैकल्पिक गठबंधन की ओर नहीं गया। और आज भी हर वो व्यक्ति जानता है कि मैं इस गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री की वजह से हूँ। और जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, किसी वैकल्पिक गठबंधन, ऑल्टरनेट अलायंस या किसी भी दूसरे गठबंधन में जाने की मैं सोच भी नहीं सकता। पॉलिटिक्स में मौका परस्ती कितनी होती है, अपॉर्चुनिटी का खेल होता है पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि मौका लगेगा तो मैं सोचूंगा भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता। और आज की तारीख में जो मजबूत मतलब जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हम लोग को मिला है, We don't need to look out for an alternative. And मैं ये मानता हूं कि बिहार जैसा राज्य चले जाएंगे तो सारा ऑल्टरनेटिव आपका तो खत्म ही हो जाएगा।
अगर नीतीश जी उधर चले गए, जो कि पहली बार नहीं होगा चिराग, मतलब इसको डिस्काउंट ना कीजिए आप, इतनी इजीली इस बात को डिस्काउंट ना करें आप। इसलिए सवाल कि कांग्रेस ने रीच आउट किया है क्या आपको? कुछ बातचीत हो रही है अंदर खाने, कुछ चल रहा है क्या? मैं पुनः दोहराता हूं कि मुझे नहीं लगता कि हर वो व्यक्ति जो चिराग पासवान को जानता होगा वो ऐसा साहस कर पाएगा टू रीच आउट टू मी फॉर एन ऑल्टरनेटिव अलायंस की सोच रखने के लिए। ओके आपके बड़े खास दोस्त हैं प्रशांत किशोर। आज खबर छपी है सारे अखबारों में कि प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं, पिछले वीक प्रियंका गांधी से मिलकर गए हैं। कुछ तो पकड़ा है पीछे, क्योंकि इस मीटिंग में यह भी बात हुई थी कि प्रशांत को अपने साइड में लाएं, स्ट्रैटेजिस्ट भी है और अब पार्टी भी चला रहा है, उसको भी लाइए। तो कुछ तो खिचड़ी पकता हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक बात और बताऊं, पिछले 48 घंटों में मुझे बताया जा रहा है कि जितने होम डिपार्टमेंट्स की फंक्शंस हो रही हैं बिहार में, वहां नीतीश जी जा रहे हैं। होम अब नहीं है उनके पास गृह मंत्रालय, लेकिन जा रहे हैं। कुछ तो बात हो रहा है, सम स्टेटमेंट मेकिंग दैट्स हैपनिंग। चिराग अंदर की बातें अब तो आप सरकार के पार्ट है यार, अब बता दो आप कि क्या हो रहा है। होता क्या है ना कि ये ना ऐसे मसाले बनाने में बड़ा मजा आता है जब चीजें स्थिर चल रही होती हैं, अच्छी चल रही होती हैं। एवरीबडी वांट्स कि कुछ तो रिपल्स क्रिएट किए जाएं, कुछ इस तरीके की बातें, कुछ इस तरीके के नैरेटिव्स, कुछ इस तरीके के र्यूमर्स। और ठीक है, ये करना भी चाहिए, जरूर करना चाहिए भाई। विपक्ष अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा और सिर्फ एसआईआर का ही बहाना करता रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटी सिकेगी कैसे? आगे चलने के लिए रेगुलर इस तरीके के भ्रम फैलाते रहने की जरूरत है कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ी भ्रम फैला रही हूँ, मैं तो तथ्यों पर आपको पूछ रही हूँ। भ्रम फैला रही हूँ मैं, ये मीटिंग हुई तो मीटिंग हुई है, दोनों मीटिंग हुई है तो मैं पूछ रही हूँ कि ये करना भी चाहिए। अगर ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है तो करे विपक्ष, कम से कम सक्रिय भूमिका में तो दिखे। ये होगा कि नहीं होगा ये सेकेंडरी है। व्हाट आई एम आंसरिंग एज पर योर क्वेश्चन कि नहीं होगा, बट क्या ऐसी चर्चाएं सुगबुगाहट चल रही है, नहीं चल रही है? अगर चल भी रही है परफेक्टली फाइन। विपक्ष को प्रयास तो करना चाहिए। हाथ पे हाथ धर के अगर विपक्ष बैठ जाएगा तो पहले ही समाप्त हो गया, अब तो पूरी तरीके से फिर समाप्त होने की बात होगी ना। सो इवन इफ दे ट्राइंग टू डू दिस, इट्स गुड फॉर देम, बट इवेंचुअली विल इट हैपन? नहीं, इनका कोई भी ऐसा कार्य सफल नहीं होने वाला। इतने लंबे समय का इतने गारंटी से जवाब देना नहीं चाहिए चिराग। राजनीति में देखिए, कल शाम में ही इतनी बड़ी सरप्राइज डिसीजन हुई है। नितिन नवीन फ्रॉम बिहार is now made the national president of the BJP। किसने सोचा था? ये नाम किसी के जहन में कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं था। नितिन नवीन is now appointed। अब आप देखिए, आप अलायंस के आप पार्ट हैं, बिहार में भी हैं, आपके ही सरकार में वहां मंत्री थे वो, अब अभी भी हैं, और अब नेशनल प्रेसिडेंट बनेंगे बीजेपी के। पहले तो आप ये डिसीजन कैसे, आपका क्या आकलन है चिराग? सबसे पहले तो आई कांट बी, मैं मतलब इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियों के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे लगता है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट व्हेन आई से दिस और नॉट, बट शायद पहली बार कोई बिहार से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो मैं नितिन नवीन जी को ढेर सारी बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं देता हूं। और जिस युवा सोच की राजनीति के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और खास तौर पर मेरा प्रदेश बिहार ही आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक युवा साथी का भारतीय जनता पार्टी जैसी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, मैं ये मानता हूं कि ये उन शुभ संकेतों में से एक है कि अब हमारा देश एक युवा सोच, एक युवा जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मैं नितिन नवीन जी को काफ़ी सालों से जानता हूं, मेरे भाई, मेरे मित्र रहे हैं वो, और ऐसे में मैं पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आपके पर्सनल इक्वेशंस कैसे हैं उनके साथ? बनेगी? ऑफ कोर्स, मतलब मेरे तो वैसे भी, खैर मैं सबके साथ मेरे व्यक्तिगत रिश्ते में हमेशा राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखता हूं और व्यक्तिगत रिश्तों को हमेशा मान सम्मान देता हूं, और ऐसे में इनके साथ तो पुराने संबंध रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में और मजबूती आएगी और एकजुटता आएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का इशारा है नीतीश जी को कि बिहार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, देखो जरा, कि हम किसी को भी उठाकर लाकर बना सकते हैं नेशनल प्रेसिडेंट, और बिहार को इतनी तवज्जो दी जा रही है तो कुछ गड़बड़ ना हो वहां पर।
मतलब हर एक चीज़ घुमा फिरा के उस राजनीतिक सोच पे ही आ जाती है कि ये नीतीश जी को दिखाने के लिए है, उनको आंख दिखाने के लिए है। नीतीश जी हम लोग को आंख दिखा रहे हैं। आई थिंक वी आर डन एंड डस्टेड done? विद दीज नैरेटिव्स। हो गया। Okay. एक मजबूत परिणाम के साथ एक मजबूत सरकार आज की तारीख में हम लोग चला रहे हैं, जो अगले 5 साल इतनी ही मजबूती से, मैं ये मानता हूं कि इन 5 सालों में एवरी मंथ एवरी वीक ये नैरेटिव सेट होगा कि अब मुख्यमंत्री जी को डाउनसाइज किया जा रहा है, तो अब उनको बदलने की सोच कब हो तक रही है। रहेंगे वो मुख्यमंत्री? चिराग, ये तो बताइए, सक्सेशन प्लान, ये भी खबर छपी थी पेपर में कि पूछा गया है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पूछा है 2 बड़े नेताओं से जेडीयू के कि क्या है सक्सेशन प्लान नीतीश जी का। अब ये बात तो आपको पता है चिराग, खूब पता है, सबको पता है अंदर क्या चल रहा है, मगर आप बोलेंगे नहीं। अब तो आप हैं सरकार के पार्ट की। पिछले बार तो आप आराम से निकल जाते थे बोल के कि मैं तो सेंटर में पार्ट हूं सरकार का, बिहार में कोई लेना देना नहीं है, और घेरते भी थे। अब बताइए, सक्सेशन प्लान पे भी तो बात हो रही है, सवाल किया जा रहा है, बीजेपी कर रही है, क्या है सक्सेशन प्लान नीतीश जी देखिए, का? फॉर अनदर 5 years आई डोंट नो, बिकॉज वो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है कि उनकी पार्टी का सक्सेशन प्लान क्या है। बट जहाँ तक रही बात सरकार की, मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल तक मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही मजबूत एनडीए की सरकार चलती रहेगी। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ लंबे समय के बाद बिहारियों को मिला है। और इसके लाभ क्या होते हैं, पिछले साल सवा साल में हम लोगों ने अनुभव भी किया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले उन साल सवा साल में 12-13 बार बिहार गए हैं, ये दर्शाता है कि जब केंद्र और राज्य में एक सोच वाली सरकार होती है तो उस सरकार को उसका लाभ मिलता है। तो ऐसे में लंबे समय के बाद ये सरकार डबल इंजन की मिली है बिहारियों को। मुझे नहीं लगता कि इस मौके को कोई भी चूकने देना चाहेगा। ठीक है, आप डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं और आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यंग पीपल इन स्टार्टअप्स एंड ऑल। तो मुझे जरा एक बात बताइए चिराग, पिछले 2 दशक में थोड़ा सा समय अगर आप छोड़ दें, जब नीतीश जी आरजेडी के साथ में थे या यूपीए की सरकार वहां बनी हुई थी, लंबे समय तक तो आप ही लोग थे सरकार में, उसके बावजूद बिहार को अब आप कहते हैं डबल इंजन। ये 20 साल का हिसाब क्यों देगा? उस वक्त आप लोग क्यों नहीं मैग्नेट बन सके निवेश के बिहार में? क्यों इतना समय लग रहा है? ये तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना चिराग। हर 10 साल, हर 5 साल पे आप कहेंगे अगला 5 साल, अगला 5 साल। बिहार तो वहीं का वहीं रुका रहा है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। नहीं, देखिए, यकीनन बिहार जिस तरीके से बनस्पत बाकी राज्य विकास की गति पर आगे बढ़े हैं, बिहार कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ा है। ऐसे में इसके कारण क्या है, राइट रीजंस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। और मैं बिना किसी लाभ लपेट के मैं इस बात को, मेघा जी, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, बिहारी हूँ, बिहार में रहा हूँ, मैंने बिहार को हर परिस्थितियों में मैंने बिहार का अनुभव किया है। जब हम लोग जंगल राज की बात करते हैं ना, बहुत सहजता से हमारे ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं और कब तक हम लोग 20 साल पुरानी बातें करते रहेंगे। बट उस 20 साल पुराने बिहार में जो 15 साल का शासन था राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला, उसने बिहारियों को कितना पीछे फेंक दिया था, इस बात का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बिहार जैसा राज्य जो नालंदा यूनिवर्सिटी पे फक्र करता था, तब जबकि देश तो भूल जाइए, दुनिया शिक्षा के महत्व को नहीं समझती थी, उस स्थिति में लाके बिहार को खड़ा कर दिया जहां पे शिक्षा पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, जहां पे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से चौपट हो गया था। आप इस पे जरूर डिबेट कर सकते हैं कि क्या 20 साल लग गए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। उस वक्त मैं इसका कारण ये दूंगा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैंने भी सवाल उठाए थे 2020 में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पर, मैंने भी कई तरीके के सवाल उठाए थे। पर उन 20 सालों में जिस तरीके से 2000 का दशक आप देख लीजिए, केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जैसे ही 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो ऐसे में जो लाभ मिलने थे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर, वो बिहार को नहीं मिल पाए। किसी भी राज्य में निवेश तब तक नहीं आ सकता जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं हो। सड़कें नहीं होंगी, कनेक्टिविटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो कैसे उस राज्य में उद्योग लगेंगे? मैं पुनः बोलता हूं कि इसमें हम लोग डिबेट कर सकते हैं कि क्या 20 साल लग गए इसको करने में, बट हाँ, ये समय लगा है। आज मैं मानता हूं कि बिहार पूरी तरीके से तैयार है निवेश के लिए, पूरी तरीके से तैयार है। यंग एंटरप्रेन्योर्स, आज जो हमारे कॉन्क्लेव की जो थीम है कि कैसे हम लोग उद्यमियों को बढ़ावा दें, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आने ज़रूरी हैं। जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में हम लोग आए, ऐसी व्यवस्था हम लोग को स्थापित करने की जरूरत है। उसके लिए आज बिहार तैयार है। आई जस्ट होप कि 5 साल बाद आप यही डायलॉग नहीं वापस लगाएं
है ना, और कुछ आगे बढ़े बिहार में। लेकिन आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी, अब मुझे बताइए एक बात, सम्राट चौधरी को अब गृह मंत्री बना दिया गया है, और मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके क्या आकलन है हिम एज द होम मिनिस्टर इन बिहार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज, ये बताएं। Of course, law and order is one of the biggest concerns for my state, and मैंने भी कई बार इस पर चिंता मैंने जाहिर की है। मैं मानता हूँ कि मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरीके से सम्राट जी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें वो क्षमता है। नॉट दैट आई एम क्वेश्चनिंग कि नीतीश जी में वो क्षमता थी नहीं थी। नीतीश जी ऐसे समय में बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल कर लेकर आए, जबकि ऐसी परिस्थिति को सामान्य करना बहुत कठिन था। सुशासन बाबू का नाम उन्हें हम लोगों ने नहीं, बिहार की जनता ने दिया। मैं मानता हूं कि उनकी सोच को आगे लेकर जाने में और मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से कुछ घटनाओं ने चिंताएं बढ़ाई हैं, उसको नियंत्रित करने में सम्राट जी सफल रहेंगे। ठीक है, तो मेरा फॉलो अप क्वेश्चन आपसे ये है, बड़ी बुरी घटना नवादा में 5 दिसंबर को हुई है, चिराग क्या आपको उस बारे में पता है? वो इंसान मर गया, अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, ही इज डाइड बिकॉज ऑफ द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम। उसको, और अगर मैं पढ़ूं तो पहले तो उसे रोक कर चोरी की गई उसके पास जो कैश थी, उसके बाद ही वाज स्ट्रिप्ड और उससे पूछा गया कि आप किस धर्म के हैं, चेक किया गया कि आप किस धर्म के हैं, और उसके बाद उसके शरीर पर पेट्रोल डाला गया, ही वाज सेट ऑन फायर, उसे ब्रिक्स और छड़ी से पीटा गया। चिराग, ये मतलब आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, और उसने अपनी अकाउंट दी है मरने के पहले। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम? This is absolutely inhuman, and Megha ji, I'll not run away or I'll not shy away from these questions, because अब जिम्मेदारी हम लोग की बनती है जी। और मैं बिल्कुल इस बात को लेकर मैं भी उतना ही चिंतित हूँ। एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो कि कंपैरेटिव आंकड़ों में उलझा कर बोलें कि भाई वहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो वो मेरे लिए, मेरी सरकार के लिए, हमारे प्रशासन के लिए वो चिंता का विषय है, होना भी चाहिए। और भविष्य में कभी ऐसी घटना कोई दोबारा नहीं हो, इसके लिए हर संभव प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाएगा। ये जिस दिन ये घटना घटी, मैं भी उस दिन उतना ही चिंतित था। मैंने भी सम्राट जी से वहाँ पे बातचीत की। मैं मानता हूँ कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय तो ज़रूर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम जितने गुनाहगार हैं उनको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, प्रेसिडेंट सेट होने चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। चिराग, अपने बारे में बताइए, आपकी पार्टी की तालमेल ठीक ठाक चल रही है बिहार में? क्योंकि बुलडोजर का एक्शन बड़ा देखा जा रहा है आजकल, और घर जिनके टूट रहे हैं उन लोगों को दलित और महादलित के जैसा आइडेंटिफाई किया जा रहा है। विजय सिन्हा जी का स्टेटमेंट में सुन रही थी, उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे बुलडोजर, और फिर आपके मंत्री की स्टेटमेंट में सुन रही थी संजय पासवान जी की, उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, सरकार बुलडोजर थोड़ी चलाने आती है। और वो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट से लग रहा है कि आमने सामने आ रहे हैं आप एक दूसरे के वहां पर। सच बताइए क्या हो रहा है? देखिए, बात आमने सामने की नहीं है, बट हाँ, बात न्याय की भी है। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि कई बार कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। कई बार कई जगह अतिक्रमण की वजह से विकास के कार्यों में गतिरोध पैदा हुए हैं। कई बार सरकार ने ही नहीं बल्कि न्यायालय के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कुछ स्थानों पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर। बट एट द सेम टाइम मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, भले वो किसी भी कारण से रह रहे हैं, पर अगर वो लंबे समय से रह रहे हैं तो ऐसे में ये जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है कि हम उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था पहले तैयार करके दें। उनके घर गिराने से पहले। और जिस बयान का जिक्र आप मेरे पार्टी के मंत्री का आप कर रहे हैं, ये उसी सोच से प्रभावित है कि अगर मान लीजिए किसी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है या संभवतः माननीय न्यायालय के किसी आदेश का पालन करने के लिए हम लोग को उस अतिक्रमण को हटाना वहां से जरूरी है, तो उसके लिए पहले वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करके दी जाए। रातों रात ठंड के मौसम में किसी का घर तोड़कर उनको सड़क पे फेंक देना, मैं नहीं मानता तो कि नहीं माने हैं आपको डिसीजन विजय सिन्हा जी का? थोड़ी अनबन हो रही है? नहीं, अनबन नहीं हो रही है। हम लोग जिस बात को हम लोग चाह रहे थे उस व्यवस्था को पहले हम लोगों ने तैयार
किया है। वहाँ पे जितनों के घर तोड़े गए हैं उनको पहले ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उनको प्रोवाइड किए गए हैं और उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई की जाएगी और ये भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है चिराग, आपसे ये पूछना चाहती थी मैं कि देखिए अमूमन ये देखा गया है कि जो भी विधायक दल का नेता होता है लगभग मंत्री पद उसी को दिया जाता है। अब आपने अपनी पार्टी में अब आप एक्सप्रेशन ऐसे दीजिएगा तो मैं सवाल थोड़ी छोड़ दूंगी, है ना। अब ऐसा है कि आप राजू तिवारी जी आपके विधायक दल के नेता बने, लेकिन मंत्री कौन बन रहा है? जो महुआ से आया था विधायक, वो वाला वही मंत्री बन रहा है ना। Yes, do you remember that? Do you remember that? Okay, fine. मेघा जी क्या याद दिलाना चाहते हैं चिराग? मैं तो कभी आपका पिछला इंटरव्यू चुनाव प्रचार के दौरान जब आपने यही महुआ को लेकर मुझे वेरी स्पेसिफिकली, वेरी कैटेगोरिकली, चिराग आप महुआ की सीट नहीं जीत रहे हैं। That's exactly how you said. और आज वही महुआ वाला हमारे मंत्री हैं। मैं मानती हूँ मेरा आकलन गलत हो गया महुआ की सीट को लेकर, मगर चिराग एक बात बताऊं आपको, जब ऐसी लहर होती है ना तो किसी को भी खड़ा कर दीजिए उस साइड के पार्टी से वो जीत जाता है। ये लहर में जीत जाते हैं, ऐसे धोखे होते हैं। मेघा जी मैं ना लहर के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत के भरोसे चुनाव लड़ता हूँ और उस वक्त भी मैंने आपको यही जवाब दिया था कि मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है कि मैंने काम किया है, मेरे सर्वे सही हैं, मैंने चुन के एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ से चुनाव लड़ाया है जिसके प्रति लोगों का रुझान है। तो लहर हो लहर नहीं हो, 2024 लोकसभा चुनाव ऐसी लहर देखने को नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद मेरा 100% स्ट्राइक रेट था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे गठबंधन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, पर उसके बावजूद मैं 5 के 5 में जिता के लेकर आया। तो मेहनत पे मुझे अपना विश्वास है, लहर हो नहीं हो। ठीक है, ये अगले इलेक्शन में देखेंगे कौन जीतता है वो सीट। मगर इतना बड़ा जनादेश चिराग, इतना बड़ा जनादेश, आप सरकार के पार्ट हैं, क्या कुछ मेजर प्लान्स तो बताइए हम सब बिहारियों के लिए भी। आई वी नीड टू हियर समथिंग गुड। क्या है अगले 5 साल, जैसा आपने कहा कि 5 साल के बाद यही डायलॉगबाजी आप वापस से मत कीजिएगा। मैं बिल्कुल 5 साल के बाद मैं कतई ये बातें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे, मैं कतई नहीं बोलूँगा। हमने क्या क्या किया है उसका हिसाब किताब मैं आपके सामने मैं रखूँगा। मैं मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह है। अगले 5 साल बिहार में अभी तक जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी वो नींव हम लोगों ने तैयार की है। मेरा अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच है जो आज की तारीख में सरकारी एजेंडे का हिस्सा है। हम लोगों ने हर ज़िले में उद्योग खोलने की बात की है, 1 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार हम लोगों ने देने की बात की है। मेरे इंट्रोडक्शन में इस बात का जिक्र किया गया कि मेरे विभाग की एक अहम भूमिका है, खाद्य प्रसंस्करण की एक अहम भूमिका, और मैं मानता हूं कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते वहाँ पर प्रसंस्करण से जुड़े हुए उद्योगों की कारपेट बॉम्बिंग हम लोगों को करने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। मेरे मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, खासतौर पर PMFMA की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आप गांव देहात के इलाकों में रह रहे युवा युवतियों को आप एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं, छोटे उद्योग आप उनके लिए आप स्थापित करके आप दे सकते हैं। इस दिशा में मेरा मंत्रालय कार्य कर रहा है। अब क्योंकि राज्य में भी अपनी सरकार है तो इन योजनाओं को धरातल पर लागू करना आसान होता है। तो यकीनन मैं मानूंगा कि अगले 5 साल में ना आप बिहार को के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बढ़ते हुए देखेंगे, वहाँ की व्यवस्था को आप बढ़ते हुए देखेंगे, पर कैपिटा इनकम को आप बढ़ते हुए देखेंगे, मेरे राज्य के राजस्व को आप बढ़ते हुए देखेंगे। 14 करोड़ की आबादी, 3,17,000 करोड़ का बजट, मैं मानता हूँ अभी हम लोग को इसमें काफ़ी गुना इजाफा करने की ज़रूरत है और इसके लिए पूरी सोच तैयार है। रिलीजियस टूरिज़्म का मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। मेरा राज्य ब्लेस्ड स्टेट है। अयोध्या में इतना बड़ा भव्य भगवान राम का मंदिर, मेरी माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बनने जा रहा है। आस्था को भी सम्मान मिलेगा और साथ ही में राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा जिसका लाभ हर बिहारी को होगा। ना सिर्फ पलायन रोकना है, रिवर्स माइग्रेशन हो मेरे राज्य में, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजस्व बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये सब का हिसाब पूछा जाएगा चिराग। ऑफ कोर्स 5 साल के बाद मैं पुनः ऐसे ही आपके सामने बैठना तो पड़ेगा। मगर देखिए आप, क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग अपने डिपार्टमेंट की और 1.5 साल से आप अब इसके मंत्री हैं, मैं पूछना चाहती थी चिराग कि देखिए बिहार के जो प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ जैसे फॉर एग्जांपल मखाना है
लीची है, भागलपुर का आम है, हाँ ये सारी चीजों के लिए मैं जानना चाहती थी, जो लोग वहां से सुन रहे हैं, आप मंत्री हैं, आप बताइए कि इन सारे फेमस चीज जो बिहार से आती हैं खाने की, उनकी क्या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां पे लगेगी, उनके लिए, उनके बढ़ावे के लिए कोई प्लान है, उनको आप बूस्ट करेंगे, क्या करेंगे आप मंत्री वहां से? ना सिर्फ लगेंगी बल्कि लग रही हैं। मैं खुद मैं जहाँ से आता हूँ, हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का आम, मखाना। सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मखाना बोर्ड का गठन किया गया जी। मखाना आज की तारीख में ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उसकी पहचान हुई है। सुपर फूड के तौर पर उसको चिन्हित किया गया है। ऐसे में मखाना बोर्ड का गठन होना अपने में दर्शाता है कि ये मखाना जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में होता है, किसान उसके साथ जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में, जिसका लाभ उनको मिलेगा। अपने विभाग के अंतर्गत जितने भी मैंने इन फलों का नाम लिया, इनके प्रसंस्करण की यूनिट वहाँ पे लगे। मैं बिहारी फर्स्ट में जब मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नहीं भी था, तब भी मैंने प्रोसेसिंग सेक्टर का मैंने जिक्र काफ़ी बार मैंने किया, और मुझे लगता है मैंने इतनी बार कर दिया कि वो मैनिफेस्ट होते होते इवेंचुअली प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग की ही जिम्मेदारी भी दे दी। कई अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बिहार में रिवर्स बायर सेलर मीट हम लोगों ने किया, जहां पे बिहार के किसानों को 70 अंतर्देशीय कंपनियों के साथ डायरेक्ट हम लोगों ने कनेक्ट कराने का काम किया। यूरोपियन, अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने उनको कनेक्ट कराने का काम किया। बिहार बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बिहार में आए, उद्योगीकरण बिहार में हो। और आज की तारीख में जैसा मैंने कहा कि अब वो व्यवस्था है, लोग भी खुशी खुशी आके निवेश करना चाह रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगले 5 साल इसलिए मैं मानता हूं कि स्वर्णिम काल के तौर पर बिहार में होंगे। इतना जबरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनना भी तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे चिराग, बताइए। There you go, back to square one. ये देखिए, ये सवाल तो छूटेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि जब तक आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे ये सवाल पूछना। लेकिन क्या है भाई, ये सब भी तो, ये सारी बातें भी तो हो ही रही थी कि चिराग पासवान काफी इंटरेस्टेड थे, अगर सिचुएशन ऐसी बनती तो रखते ऐसा दावा सामने। मैं देखिए इतना मैं ज़रूर बोलूँगा विदाउट शाइंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मेरी प्राथमिकता बिहार है। मैं राजनीति में आया ही बिहारियों की वजह से हूँ। दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है, और मैंने देखा है कि किन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बिहारी रहते हैं। और ऐसे में मुझे इस बात की चिंता होती है कि क्यों बिहारी को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आप शिक्षा के लिए देख लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों का क्लस्टर बना के भी हम लोग स्थापित कर सकते हैं, जो अब हम लोग करेंगे। तो ऐसे में तीसरी बार का सांसद होने के बाद इस बात को मैं समझ गया हूं कि दिल्ली में रहकर ये सब करना संभव नहीं होगा। तो बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए बिहार जाना होगा। हाँ, इसी कैसे? साल बिहार कैसे जाना होगा? इसी साल में बिहार किस पद पे जाना होगा? आपको पता है ना कि बीजेपी क्या कहती है आपके बारे में? ऐसे ऑन रिकॉर्ड कहे या ना कहे, मगर बात तो वो ऑफ रिकॉर्ड ये कहते हैं कि चिराग अगर अपनी पार्टी हमसे विलय कर ले तो चिराग हमारा सीएम का फेस होगा। देखिए, ये बात होती है। अब आप मन में मुझे कोस रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें, दीज आर फैक्ट्स। मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी माँ के समान है, और कतई मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला, पार्टी को आज मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ मैं खुद केंद्र में मंत्री, मेरे 5 सांसद, मेरे 2 मंत्री, बिहार में मेरे 19 विधायक, झारखंड में मेरा 1 विधायक, नागालैंड में मेरे 2 विधायक। पार्टी को उस मजबूत परिस्थिति पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब पार्टी की नींव रखी थी तो सोच रखी थी कि पार्टी उन ऊंचाइयों को एक दिन हासिल करे। ऐसे में मैं कतई उनकी सोच के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। तो विलय करना कतई, अलायंस में रहेंगे, विलय का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेवर एवर। ओके, फाइनली खत्म कर रही हूँ मैं। एक रैपिड फायर राउंड है चिराग, आई नो हाउ मच यू हेट इट बट सो सॉरी, वी हैव टू डू दिस। शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन?
बायस हूँ मैं इस बात को लेकर, आई कांट लुक बियॉन्ड माय फादर बट देन डेफिनेटली यस, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मजबूती दी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, उनके विचारों को मजबूती देने का काम मेरे नेता ने किया, तो मेरे लिए ये स्मार्ट। ओके, आपके राजनीतिक गुरु कौन है, रामविलास पासवान या नरेंद्र मोदी? बचपन से जिन्होंने मुझे बोलना चलना सिखाया, उनके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, मेरे पिता। ओके, ऑलराइट। लालू परिवार में आपसे सबसे करीबी दोस्त कौन है लालू परिवार में आपका? दोस्त नहीं, सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है। मैंने राबड़ी जी को हमेशा अपनी माँ माना है, लालू जी मेरे लिए हमेशा से मेरे पिता समान रहे हैं। भाई बहनों की तरह मैं मीसा दी हूँ, तेजस्वी हूँ, इनके साथ हम लोग बातचीत होती पले है? बड़े हैं। बिल्कुल बातचीत होती है। अभी भी होती है? अभी भी होती है, क्यों नहीं होती है? क्या वो मुद्दा बातचीत है। होती है चिराग? कुछ नहीं जो कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती, पारिवारिक संबंध को अलग रखना। मैं जानता हूँ, मेरा भतीजा हुआ है, बहुत समय से मैं उससे भी नहीं मिल पाया हूँ, तो ऐसे में इन्हीं चीजों को लेकर बातचीत आप होती जितने है। भोले दिखते हैं ना उतने हैं नहीं, लेकिन थैंक चलिए, यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। it is not a compliment actually. You are a shrewd politician. अब चिराग, सियासत में चिराग कभी किंग बनेंगे या हमेशा किंग मेकर ही बने रहेंगे? मुझे नहीं पता इन दोनों की परिभाषाएं क्या हैं, किंग और किंग मेकर की, बट हाँ, अभी जिस भूमिका में हूँ संतुष्ट हूँ, इसी भूमिका को और ग्रेविटी देने की सोच रखता हूँ। सियासत में बेहतरीन मौसम वैज्ञानिक कौन? ओह, नो वन कैन बीट माय फादर। एक्चुअली मौसम वैज्ञानिक राजनीति में हो सकते हैं, इस बात को परिभाषित मेरे पिता के द्वारा किया गया। कई लोगों ने आलोचना की तरह ये बात उनके लिए कही, बट मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, ये कहीं ना कहीं आपकी तारीफ है कि अगर आप जनता की नफ्स को समझ पा रहे हैं। to know which way the wind is blowing. एब्सोल्युटली। है ना? नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? मुझे लगता है आप जनता के विवेक को चुनौती देते हैं जब इन सवालों के जवाब एक मंच पर बैठकर आप खुद नहीं। देने लगते हैं। ये जनता डिसाइड करती है, किसी की बढ़ती उम्र के बारे में रियलिस्टिक होते हैं। ये जनता डिसाइड करेगी कल को जब जनता के सामने ये विकल्प रखेंगे। और बिहार में तो इतने सारे विकल्प हैं, हर राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आता है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है। मोदी कैबिनेट में कब तक फूड प्रोसेसिंग मंत्री बने रहेंगे चिराग पासवान? किसी और मंत्रालय की उम्मीद है या नहीं? अच्छे बड़े मंत्रालय की। विशेषाधिकार पूरी तरीके से मेरे प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है मेरे सर आंखों पर, उतनी ही शिद्दत और ईमानदारी के साथ इसको निभाता अरे रहूंगा। कुछ इच्छा तो होगी ना? अरे प्रभु, सारी इच्छाएं मंच के लिए नहीं होती और इच्छाओं से कुछ नहीं होता। चाहत का हकीकत के सामने कोई वजूद नहीं होता। क्या बात है। ऑन दैट वेरी नोट, चिराग पासवान, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर दिस डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन। आप आए, आपने समय निकाला, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, स्टिल आप आए सुबह सुबह, वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। धन्यवाद मंत्री जी, और आपसे अनुरोध है कि कुछ मिनट आपका हम मंच पर और चाहेंगे। और अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं एबीपी नेटवर्क के सीईओ सुमंतो दत्ता जी का। आप आएं और मंत्री जी को सम्मानित करें। तो मंत्री जी, जो शंख है वो श्री समृद्धि और उद्यमशीलता का प्रतीक है, तो इसी शंख के साथ 2047 के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।
तो इंडिया है 2047 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव जो हम कर रहे हैं, इसमें भारत के विकास की चर्चा कर रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव में हमारे साथी हैं को पावर्ड बाई मॉन्टे कार्लो, ड्रिवन बाई किया मोटर्स, स्पेशल पार्टनर ग्रीन प्लाई, पार्टनर इंडिया फर्स्ट इंश्योरेंस, कारगिल, कॉटन किंग, स्टेट पार्टनर हरियाणा गवर्नमेंट और टूरिज्म पार्टनर दिल्ली टूरिज्म। तो 2047 में भारत के स्वर्णिम काल की मेहनत चल रही है और इनोवेशन के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, सत्ता के लेवल पर, सभी स्तरों पर भारत के सर्वांगीण विकास का जो संकल्प लिया गया है, उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए एबीपी नेटवर्क ने ये बड़ा मंच तैयार किया है ताकि हम भी उस पर चर्चा कर सकें और ये बात कर सकें कि आखिर उस संकल्प की सिद्धि का रास्ता क्या होगा और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो कैसे भारत को सशक्त बना सकते हैं और 2047 के भारत की जो कल्पना है उसे साकार कर सकते हैं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उन उद्यमी को जिन्होंने देश में मैनेज्ड ऑफिस स्पेस की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। आज 14 शहरों में 14 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा क्षेत्र में काम करता है और हाल ही में भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर नई ऊंचाई पर पहुंचा है। स्मार्ट वर्क के को फाउंडर हर्ष बेनानी जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर और उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगी हमारी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना हिसार खान। आप दोनों का मंच पर स्वागत है। नमस्कार, हाजिर हूं मैं रोमाना हिसार खान। तो ये एबीपी का मंच सजा हुआ है और यहाँ पर 2047 विकसित भारत को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ा जाए और कैसे विकसित भारत का सपना 2047 तक साकार किया जाए, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हर्ष बेनानी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष जो अपने आप में एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन है। स्टार्टअप की जब आप बात करेंगे तो फिर जो कामयाब स्टार्टअप्स आपके जहन में आएंगे उसमें स्मार्ट स्पेसेस अपने आप जहन में आ जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ जरा हर्ष का स्वागत कीजिए। पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि ये जो स्मार्ट स्पेसेस है, ये आइडिया कैसे आया? पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई नो इट्स अ वेरी फॉगी मॉर्निंग दिल्ली में और पर्टिकुलरली मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि बहुत लोग यहाँ पे खास करके ट्रैवल करके आए दिल्ली, तो थैंक यू फॉर दैट। इंडिया बहुत चेंज हो गया है लास्ट 10 सालों में और पर्टिकुलरली आज के दिन इंडिया का युवा, जैसे हम इंडिया को वर्ल्ड के नज़र से देखते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमें लास्ट फ्यू इयर्स में दिखाए। ग्रोइंग अप इन कैलकाटा, मैं दिल्ली आया पढ़ने, उसके बाद मैं 5 साल यूएस में बिताया जहां मैं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काम करता था, मैकिन्जी, और साथ में मैंने अपना बिजनेस स्कूल भी वहाँ पे परस्यू किया। ग्रोइंग अप इन इंडिया हमेशा हमें एक ऐसा एहसास होता था कि इंडिया की जो ऑफिस एक्सपीरियंस है उसमें उतना एनर्जी हमें नहीं आ रहा है। और आज के दिन जब अपने बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान का, ऑफिस की डेफिनेशन और परिभाषा टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन 4 दीवार में डेस्क लगाया हुआ जहाँ लोग आके काम करते हैं, सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। जब हम गूगल, मेटा वगैरह की कैंपसेस की छान कर रहे थे, काफ़ी हमारे दोस्त वहाँ पे काम करते थे, हमें वहाँ पे एक माहौल दिखा जो ऑलमोस्ट इक्वेट मैं कर सकता हूँ एज अ डिज्नी लैंड फॉर अडल्ट्स। जिम है, क्रैश है, फूड कोर्ट है, और आपको सडनली ये चीज़ की एहसास हुई कि अगर आज के दिन हम ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो क्यों ना ऑफिस में हम ये सारे सुख सुविधाओं का भी निर्भर करें और साथ में इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो। और इंडिया आज के दिन केवल ग्लोब की आइडियाज़ को नहीं लेता है, इंडिया उस आइडियाज़ को अपने हिसाब से इंडियनाइज करता है। और स्मार्टवर्क्स की आइडिया बिल्कुल इंडिया की आइडिया है। वर्ल्ड की आइडिया थी कोवर्किंग, जहां आप एक तल्ला भाड़े में लेते थे, सुख सुविधाएं आप प्रोवाइड करते थे और स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस को आप वो जगह देते थे। जब हमने इंडिया में ये आइडिया का प्रचलन किया, मेरे फाउंडर नितिश, इनिशियली मैं 6 महीने बाद उनको ज्वाइन किया, हमें ये चीज़ की क्लैरिटी हो गई कि इंडिया में 75% रियल एस्टेट जो है आज के दिन छोटे प्रमोटर्स, वन टाइम लैंडलॉर्ड्स ओन करते हैं।
बट साथ में आपका जो डिमांड है 90% गूगल, फेडेक्स, एक्सेंचर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज चलाती है। तो यहीं पे आइडिया का निर्माण हुआ कि क्यों ना हम पूरी ऐसी बिल्डिंग्स इंडिया के टॉप शहरों में, टॉप कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स में ले, जहाँ पे हम उस स्पेस को ट्रांसफॉर्म करें, सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करें और साथ में जाके ये एंटरप्राइजेस को बोले कि आपको ऑफिस की आवश्यकता क्यों है। हम एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफिस भी दे रहे हैं, आपकी सारी ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहे हैं, इसमें आपको 20% सेविंग्स भी होएगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एम्प्लॉइज विल बी वेरी हैप्पी एंड प्रोडक्टिव। तो वर्कप्लेस इकोसिस्टम को आपने बदला कैसे? वर्कप्लेस इकोसिस्टम को बदलने के लिए हमने काफ़ी सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए। पहले तो हमने उस वर्कस्पेस में वर्ल्ड के सारे एस्पिरेशनल अम्यूनिटीज़ का निर्माण किया। साथ में आज के दिन इंडिया का टाइम हो गया है इंस्टेंट, जब हम बात करते हैं क्विक कॉमर्स, 10 मिनट में हमें डिलीवरी चाहिए, तो स्मार्ट वर्क्स का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही सिमिलर है। हम वर्कप्लेस की सारी अम्यूनिटीज़ भी आपको देते हैं और साथ में 60 दिन में आपका बना बनाया ऑफिस आपको प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आपको कॉस्ट सेविंग्स भी मिलती है और साथ में आपके एम्प्लॉइज़ बहुत हैप्पी और प्रोडक्टिव रहते हैं। शाम को आप जब ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप थके हुए जाओ, आप जिम या सारे अम्यूनिटीज़ की सुविधा लेके भी जा सकते हो। तो इस एस्पिरेशन से हमने इस मॉडल को डेवलप किया और इस कॉन्सेप्ट की आप तेजी देखिए। 10 साल पहले फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस इंडिया में 0% था, 0। और आज के दिन 10 करोड़ स्क्वायर फुट से ज़्यादा, जो कि 10% ऑफ इंडियाज कमर्शियल ऑफिस स्पेस है, ये आइडिया बन चुका है। स्मार्ट वर्क्स इस ग्रोइंग स्पेस में एक लीडरशिप पोजीशन का निर्माण कर चुका है और ये जान के हमें खुशी होनी चाहिए कि इस सेक्टर में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया की ऑफिस की गोल्डन रन लास्ट 10-15 सालों से चल रही है और अब ये रन और बड़ा होता जाएगा। तो यही वजह है ना कि आपने बाकायदा वो एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 14 मिलियन स्क्वायर फीट का साम्राज्य है। भारत में 13 शहर हैं जिनमें 59 सेंटर्स हैं और 2 सिंगापुर। तो ये आगे किस तरीके से आप इस ग्रोथ स्टोरी को देख रहे हैं? और क्योंकि आप कह रहे हैं कि आगे तो ये रन और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है मामला, तो 2047 जो विकसित भारत की कहानी है, वहां स्मार्ट जो ये स्मार्ट प्लेसेस, स्मार्ट वर्क्स है, वो किस तरीके से फिट होता है? इसके लिए हमें थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। इंडिया 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस में 100 करोड़ स्क्वायर फुट ऑफिस स्पेस का निर्माण कर चुका है। हर एक देश की एक टाइम आती है जब आपको वो क्वाड्रपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखना स्टार्ट होता है और आज के दिन हम उस मुकाम में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जहां प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरी ईयर 5 से 6 करोड़ स्क्वायर फुट एवरी ईयर लीज होती है। इतने छोटे टाइम में अगर आप इमेजिन कर लीजिए, इतना ये बड़ा बन चुका है काम। इंडिया में नेक्स्ट 10 से 15 सालों में ही एक और 100 करोड़ स्क्वायर फुट वापस बनेगी। Oh my God. तो आप इमेजिन करिए, जो 75 साल में हुआ नेक्स्ट 10 से 15 सालों में फिर होने वाला है। और आप ग्लोबली देखिए, ये चीज़ की चर्चा हर जगह हो रही है कि इंडिया इज़ द ऑफिस टू द वर्ल्ड। तो गोइंग फॉरवर्ड 2047 में जहां हमारा बहुत बड़ा गवर्नमेंट का, मोदी जी का, सबका एस्पिरेशन ये है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो आप केवल इमेजिन कर सकते हो कि ऑफिस स्पेस की पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ने वाली है। इंडियन के जो स्टार्टअप्स हैं उनको तो ऑफिस स्पेस चाहिए, बट साथ साथ आपके जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो या पुराने ग्रुप्स हो, वो सब भी ऑफिस बड़े मात्रा में इस कैटेगरी में मूव कर रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ जो हुई है लास्ट 5 सालों में, कोविड के बाद इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की चलन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपना ऑफिस सेटअप कर रही है, इंडियन एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, और वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उन्हें इंडिया केवल सस्ता लगता है। सस्ता लगता तो शायद वो कॉल सेंटर में ही सीमित रहते। अब उनके इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो उनके पूरे कंपनी को चलाती है, वो भारी मात्रा में आ रही है। तो चाहे वर्ल्ड में बंदी हो या तेजी हो,
इंडिया का ऑफिस मार्केट हमेशा रॉक करता रहेगा क्योंकि बाहर की कंपनीज आते रहेगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए आपकी, ठीक है ये सब हम कह रहे हैं, पर क्या आने वाले 20 साल में जो हमारा वर्क प्लेस है वो इसी तरीके का रहने वाला है? उसमें हम किसी तरीके का देखते हैं क्या वो इवॉल्व करेगा? क्योंकि अभी तो ज़्यादातर फिजिकल मोड में, आगे क्या हाइब्रिड मोड या फिर कोई और तरीके का जिसमें आपको लगता है कि ऐसे इवॉल्व कर सकता है आगे जो वर्क प्लेस है? Look, change is the only constant. Okay. Workplace in India has evolved probably more in the last 10 years than it has evolved in the last 50 years. आज के दिन का इंडियन युवा एम्प्लॉई को वर्ल्ड का आभास है, एहसास है, वो जानता है गूगल की ऑफिस अगर सैन फ्रांसिस्को में ऐसी है तो दिल्ली हो या पुणे हो हमें भी ऑफिस वैसा ही चाहिए। तो आज के दिन टाइम्स हैव चेंज ड्रामेटिकली। 20 सालों में बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि क्या होएगा, बट ये जरूर प्रिडिक्ट करना इजी है कि क्या चेंज नहीं करेगा। तो क्या चेंज नहीं करेगा? ह्यूमन कनेक्शन। ओके। इंडिया इज नॉट बिल्ट कंप्लीटली फॉर वर्क फ्रॉम होम। इंडिया स्ट्राइव्स फॉर ह्यूमन कनेक्शंस। और कोविड के बाद एक बहुत बड़ा दौर चला था वर्ल्ड ओवर जहां वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन काफ़ी चला, बट आज के दिन अगर आप देखोगे लास्ट 3-4 सालों में हाइब्रिड मोड एंड रेगुलर वर्क फ्रॉम ऑफिस इज द वर्ल्ड ऑर्डर। So work from home is not future. वर्क फ्रॉम होम कैन ऑब्वियसली इवॉल्व इनटू अ हाइब्रिड मोड, Okay. बट वर्क प्लेस में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहेगी जो मैं बोलता हूँ कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ए, डिज़ायर फॉर एक्सपीरियंस। तो जो भी आप वर्क प्लेस में काम करोगे वहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय का डिमांड रहेगा कि हमें बहुत सारे अम्यूनिटीज, सुख सुविधाएं चाहिए। और सेकेंड, गोइंग फॉरवर्ड वर्क प्लेस, हमें ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस की ओनरशिप नहीं होएगी, वर्क स्पेस की लीजिंग होएगी, जो हमारे फॉर्मेट में आज के दिन होती है कि आज के दिन आप जगह केवल भाड़े में मत लो, आपका जगह पूरा मैनेज्ड होएगा। तो वहाँ पे भी हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेगी। तो जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके थ्रू ड्रिवन वर्क प्लेस में क्या इनोवेशंस आप देख रहे हैं आने वाले कुछ समय में? इंडिया इज़ अ ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन, और इंडिया आपको एक बहुत बड़ा माध्यम देता है, ना कि केवल स्पेस से, बट जस्ट क्योंकि इतने सारे लोग भी हैं यहाँ पे कि आप बहुत सारे इनोवेशंस के ग्लोबल कैपिटल बन जाते हो। और ऑफिस स्पेस में तो हमने एक बहुत बड़ा इनोवेशन देखा ही है, इनोवेशन एंड एडवेंट ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आज के दिन जब मॉर्गन स्टैनली इस चीज़ की बात करता है, चर्चा करता है कि इंडिया इज़ द ऑफिस टू द वर्ल्ड, वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज इंडिया में जो इनोवेशन हुई है, वेदर इट्स विथ रिगार्ड्स टू वर्क प्लेस, रेंटल आर्बिट्राज तो है ही, बट टैलेंट की भी आर्बिट्राज है। यहाँ पे आपको गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारे बाहर की कंपनीज दिखेंगी गोइंग फॉरवर्ड, जो यहाँ पे आके इनोवेशन करेगी, और इंडिया में जो वो इनोवेशन करेंगी अपने R&D में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स में, वो इनोवेशन वर्ल्ड ओवर जाएगा। सो अर्लियर वी वर नोन टू absorb a lot of innovation from the world. Going forward, we expect the next decade India will be a massive exporter of a lot of innovation, particularly in the workplace area. So we'll be the leaders basically. Absolutely. हम दिशा दिखाएंगे दुनिया को इस स्पेस में। अच्छा, मुझे बताइए कि जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो अगर ग्लोबल कंपनीज जो हैं उनको इंडिया में क्या चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? सो आज के दिन जब अपने ग्लोबल कंपनीज की बात करें, इंडिया इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन टू देम, और पहला जहन हमारे माइंड में यही आएगा कि ग्लोबल कंपनीज को इंडिया शायद इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे एक तो भाड़ा कम है, वी आर अ डॉलर मार्केट, रेंटल इज ऑलवेज लेस देन $1 a square foot. सेकेंडली, यहाँ पे टैलेंट इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ लोअर कॉस्ट दैन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये दोनों चीज़ तो आपका एक, आप मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये तो एक कंपनीज तरीके से अट्रैक्ट base होती है, है, बिल्कुल। बट दिस इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मोर अट्रैक्टिव टू कंपनीज आज के दिन जो भी कोई देख रहा है, एक कंपनी चाहती है स्पीड, दूसरी कंपनी चाहती है फ्लेक्सिबिलिटी। Okay. और आज के दिन इंडिया जो स्पीड से, जैसे मैं आपको अपने हमारे कॉन्सेप्ट की भी चर्चा कर रहा था कि 60 दिन में ना कि हम आपको ऑफिस दे रहे हैं, बट इंडिया ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी कि 60 से 90 दिन में आपको एक बहुत बड़ा टैलेंट फोर्स खड़ा करके दे दे। और आज के दिन हम एक चर्चा कर रहे थे ग्लोबल बैंक की, जिससे मैं लास्ट वीक मिला था जब वो US से आए। उन्होंने इस बात की जहन की कि हमारा सेंटर इंडिया में भी है, पोलैंड में भी है, फिलीपींस में भी है, और US और यूरोप में तो है ही, बट हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम लिटरली 3000 लोग 60 दिन में एक बने बनाए ऑफिस में Shift हो हायर रिक्रूट करके शिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज द स्केल एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। और आज के दिन इंडियन टैलेंट की चर्चा तो
वर्ल्ड ओवर ही होती है। आप देखिए इंडियन टैलेंट हैज डन सो वेल ग्लोबली, और यही चीज़ अगर आप देखिए, आप मल्टीप्लाई करके बोले कि यही सेम चीज़ अब इंडिया में होगी, सेम इंडियन टैलेंट, बट आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दिया है और ग्लोबल कंपनीज का एक और माध्यम दे दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन एंड कंपाउंडिंग विल हैपन एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस। पर हर्ष, आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा इंडियन टैलेंट है, मतलब वर्क प्लेस की तो हम बात करें, जो वर्क फोर्स है उसको भी रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, खासतौर से आने वाले समय में जिस तरीके के चैलेंजेस हैं, एआई जिस तरीके के चैलेंजेस पोज कर रही है, तो उनको रेलेवेंट बनाने के लिए आपको क्या लगता है कहाँ ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है? आज के दिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, पहला एक डर सबके माइंड में ये आ जाता है कि ये तो शायद ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। ओके। थॉट प्रोसेस हमें सबको अपना थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। कंप्यूटर जब आई थी तब भी सेम ही चर्चा हुआ था कि ये शायद हमारी जॉब्स को ले लेगा। सबसे पहले तो हमें एक सेल्फ अवेयरनेस करनी पड़ेगी दैट वी आर रेडी टू एम्ब्रेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। वी आर नॉट गोइंग टू बी फाइटिंग अगेंस्ट इट, वी आर गोइंग टू बी एम्ब्रेसिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद इट। और साथ में यही चीज़ हम देख रहे हैं, ग्लोबल कंपनीज जब इंडियंस को यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में हायर करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो रन करते हैं उन्हें अपस्किल एंड ट्रेन करने के लिए। तो आज के दिन इंडिया के वर्कफोर्स को वी शुड सी दिस एज अ बिग अपॉर्चुनिटी कि इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा कर रही है, बाहर की कंपनीज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन दी ओनली थिंग दैट विल कीप अस एट द सेम पेस इज़ अगर हम हमारा स्किल सेट्स को टाइम के साथ पूरा रेलिवेंट रखें। तो भारी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हैज़ टू बिकम अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन करिकुलम ऑफ स्कूल्स। और साथ में केवल एजुकेशन नहीं, हमें एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। जब मैं यूएस में था, ये चीज़ को मुझे काफ़ी दिखा और एहसास हुआ कि अगर एजुकेशन के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती, जो आज के दिन हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पुश भी मारा है टुवर्ड्स इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, कि जितना ज़्यादा हम एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल को प्रैक्टिकल के तरफ बदले और अडॉप्ट कराए मार्केट में, वहीं पे हमारा मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर दे सके बिल्कुल। अपने यंग टैलेंट को, कि वो सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं उससे नहीं, बल्कि उनको ऑन हैंड एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, ताकि जब वो टेक्निकली वर्कफोर्स में एंटर करें तो वो फुली ट्रेंड हो। यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज ऐड ऑन। नहीं, जैसे आपने कहा कि वर्कफोर्स हैज़ टू बी ट्रेंड, रीस्किल्ड, रीट्रेंड, रीस्किल्ड। सो ये कार्यक्रम पूरा चलते रहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब इतना जल्दी चेंजेस आपको दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि 3 साल बाद ये सेम चीज़ रहे। ठीक है, तो अब इस पर आते हैं कि 2047 जो विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं, उसमें हर्ष का आकलन क्या है? वो कौन से सेक्टर्स होंगे जो हमारे लिए ग्रोथ इंजन्स का काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो विकसित भारत का जो ड्रीम है, ऑल ऑफ अस कलेक्टिवली शेयर इन द रूम इन द कंट्री, दैट ड्रीम बाय इटसेल्फ इज वेरी एक्साइटिंग। और ये ड्रीम केवल फ्यू सेक्टर से नहीं होएगा, दिस हैज़ टू बी अ ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, बिकॉज इंडिया में पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं देयर इज सच अ लार्ज बॉटम ऑफ द पिरामिड इज वेल। अगर हमें ये सारे सेक्टर्स को पेनिट्रेट करना है, तो द नेक्स्ट वेव इन इंडिया हैज़ टू मूव अवे फ्रॉम सिटीज़, particularly towards a lot of tier 2 and tier 3 cities. So हमें particularly ऐसा लगता है कि ये artificial intelligence led disruption तो हर जगह होएगा ही, but digital public infrastructure में काफ़ी भारी मात्रा में हमें ग्रोथ दिखते हुए जा रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ क्रिएट होएगी, एंड दैट इज़ द ओनली वे वी कैन रीच टू द masses एट अ tier 2, tier 3 लेवल विलेज टाउन्स। सेकेंड, हेल्थ केयर और एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे पहले बहुत फिजिकल मात्रा से अब हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स विद डिजिटल हैव हैड मिक्स्ड रिजल्ट्स, बट गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन जो फिजिकल और डिजिटल को कंबाइन करे, वो भी एक भारी तरीके से एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाएगा। और फाइनली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का प्रचलन, जहाँ पे आप वर्ल्ड के सारे बेस्ट कंपनीज को यहाँ पे लाते हो, और वो एक भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्रिएट करती है, और इंडिया में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करती है जो वर्ल्ड ओवर जाएगा। यहाँ पे भी हमें लगता है एक बहुत बड़ा स्कोप और अपॉर्चुनिटी आएगा। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम हिंदुस्तान में बात करते हैं, तो खासतौर से वहाँ पर जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, अभी तक तो हम देख रहे थे कि स्टार्टअप हब के तौर पर जो हमारे बड़े शहर हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, तो यहीं तक वो सीमित था। लेकिन अब जो स्टार्टअप्स हैं, जिस तरीके से इस मंच पर पहले भी बात हुई है कि वो टियर 2 में भी एक तरीके से हब बनकर उभर रहे हैं। आप जयपुर का एग्जाम्पल लीजिए, आप इंदौर का एग्जाम्पल लीजिए, तो ये स्टार्टअप्स का रोल
उस ग्रोथ स्टोरी को इंक्लूसिव बनाने के लिए और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक लेकर जाने के लिए वो आप किस तरीके से लिंक करते हैं? बिल्कुल, देखिए आज के दिन स्मार्टवर्क्स भारी मात्रा में टीयर 1 सिटीज़ में ग्रो किया है, बट साथ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें टीयर 2 सिटीज़ में भी अब दिख रहा है। Okay. और जब हम जाते हैं आज के दिन जयपुर, इंदौर, हर जगह हमारा वहाँ पे व्यवसाय है, तो एक चीज़ हमें बहुत क्लियर हो गया है कि टैलेंट तो इंडिया में ब्रॉड बेस्ड है। टैलेंट को निखारने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन जब हम भारी मात्रा में ऑफिसेज क्रिएट कर रहे हैं, द ओनली ब्रिज दैट यू आर एक्चुअली नाउ ट्राइंग टू एड्रेस is making sure that top quality talent which is coming from Bharat, tier 2 cities, is getting access to the right infrastructure and opportunities. Because अगर आप उसको infrastructure नहीं provide करते हो, वो same काम जयपुर में बैठ के भी कर सकता है और same काम यहाँ पे गुड़गांव जो 3 घंटा दूर है वहाँ पे भी कर सकता है। बट वो जयपुर में उसके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि मैं क्यों जाऊँ जब मेरे को सारी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रही है या मिलने वाली है। So we believe that infrastructure development will be the biggest leveler which will ensure कि चाहे आप टीयर 1 में हो, चाहे आप इंदौर में हो, चाहे आप कोई विलेज में हो, you are able to access the same infrastructure on the digital and physical format. तो स्मार्टवर्क्स जैसे जो आपका जिस तरीके का एक स्टार्टअप है वो जो बाकी स्टार्टअप्स हैं उनको भी पुश देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। आप ये कह रहे हैं कि टीयर 2 सिटीज़ तक पहुंचने के लिए उसमें फिर कोई भी स्टार्टअप हो उसको शायद कॉस्ट भी बेटर होगी, कॉस्ट एफिशिएंट निकल कर आएगा मामला अगर आप टीयर 2 में अपना फोकस रखेंगे तो या अपना बेस बनाएंगे तो। हर्ष? बिल्कुल, कॉस्ट का एडवांटेज तो डेफिनेटली रहेगा। कॉस्ट का एडवांटेज विल नॉट ओनली बी इन टर्म्स ऑफ स्पेस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। और आज के दिन अगर आप देखते हैं बहुत सारे बड़े कंपनीज क्यों हिचकिचाते हैं ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाने के लिए, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि हमें शायद एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पे हमें अच्छी सुख सुविधाएं मिलेगी, अच्छा टैलेंट मिलेगा। अगर आप वो एक ट्रस्ट ब्रिज करके उन्हें ये चीज़ की एहसास करा पाओ कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगी बट दिस विल बी एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट टू टीयर 1, then India being such a value driven economy, it is a no brainer कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की भी ग्रोथ आपको भारी मात्रा में दिखेगी। और साथ में उसके अराउंड जो इकोसिस्टम आपको चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल कॉन्डोमोनियम्स बनाना हो या मॉल्स बनाना हो, तो वो भी साथ साथ क्रिएट पूरा होएगा। पुश मिलेगा ना। बिल्कुल। और इसीलिए वो इंक्लूसिव ग्रोथ जो समावेशी विकास है वो आप अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि जो भारत के लिए कहा जाता है कि साहब यहाँ हर 1 घंटे में 2 से 3 नए स्टार्टअप जो हैं वो बन रहे होते हैं। ओवरऑल जो इंडिया की 2047 का डेवलप्ड इंडिया वाला जो हमारा एक ड्रीम है, जो सपना है, वो साकार करने में ये जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं इनकी भूमिका क्या रहने वाली है? स्टार्टअप्स हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फिनोमेना इन द लास्ट डेकेड। अगर आपने देखी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो हुई है, प्रैक्टिकली आपके हाथ में कुछ नंबर्स होते होंगे ऑफ वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन 2014 और आज के दिन इंडिया के स्टार्टअप्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। लास्ट 2 इयर्स में आपको भारी मात्रा में बहुत सारे इंडियन कंपनीज का घर वापसी भी होते हुए दिखा है जो घर वापसी करके फाइनली यहाँ पे इंडिया में आईपीओ कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स हमारे व्यू में एक बहुत बड़ा ब्रिज है बिटवीन मेकिंग इन इंडिया एंड सर्विंग टू द वर्ल्ड। और स्टार्टअप्स आज के दिन चाहे वो कोई एक कॉलेज का स्टूडेंट हो या कोई कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो, सबके मन में एक एस्पिरेशन है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। 10 साल पहले या 20 साल पहले जिसको भी अमेरिका जाने का मौका मिलता था शायद वो एक अमेरिकन ड्रीम ही लिव करना चाहता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड इन इंडिया। You are here to live the Indian dream and create impact at scale globally. उस एस्पिरेशन से हमने अपने कंपनी को भी काफ़ी बढ़ाया और आज के दिन हमें बहुत इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन है कि हमारा जो सेक्टर है जिसमें काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बन गया है। हमारा सेक्टर इज़ नॉट दी ओनली वन विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं और आज के दिन हमें ऐसा लगता है कि 20 सालों में इंडिया वुड हैव चेंज्ड अ लॉट एंड जो स्टार्टअप्स एक ब्रिज क्रिएट करेंगे ऑफ सर्विंग द वर्ल्ड, इट विल नॉट बी लिमिटेड टू ओनली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाना, बट जो आपका एक सॉफ्ट पावर होता है कि इंडियन कंपनीज कैन बी वर्ल्ड बीटिंग, कैन क्रिएट ग्लोबल इम्पैक्ट एट स्केल। जो आज के दिन हम वर्ल्ड के यूएस कंपनीज देखते हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसा ही एस्पिरेशन हम सबके माइंड में है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली इकोनॉमिक इम्पैक्ट
but it creates a nationwide global impact. That is where we believe startups can actually create that मैं वही transformation. जानना चाह रही थी कि क्या स्टार्टअप्स को लेकर हम इस तरीके का कोई सपना देख सकते हैं कि वाकई में इतना पोटेंशियल कि आप ग्लोबली उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो? हम तो वो सपना रोज ही देख रहे हैं, और लास्ट फ्यू इयर्स में आप जो जो स्टार्टअप्स को देखोगे लास्ट 3-4 सालों में कितने सारे कंपनीज हैव गॉन पब्लिक, कितने सारे कंपनीज हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ कैपिटल. सो हमारे माइंड में कोई ऐसा डाउट है ही नहीं. लेकिन कि- बहुत से कुछ ऐसा भी कि ग्राफ ऊपर जाता है और फिर एकदम से नीचे भी चला जाता है. इस तरीके देखिए के वो भी ग्राफ कुछ होना, miscalculations वो दिखते थोड़ा हैं. ग्राफ होना स्वाभाविक है. Okay. क्योंकि स्वाभाविक इसलिए क्योंकि वो डीएनए एंड द डेफिनेशन नीड्स टू कीप इवॉल्विंग. आज के दिन एक चयन ये हो गया था कि हम स्टार्टअप्स को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन स्टार्टअप फंडिंग उठाती है. हाँ. क्यों? जिस दिन उस कंपनी ने पहला प्रॉफिट करा है हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? जिस दिन उस कंपनी ने 3-4 सालों में भारी मात्रा में कैश फ्लो जनरेट ऐसा किया कि उसे बाहर की फंडिंग की जरूरत ही नहीं है, हम वो क्यों ना सेलिब्रेट करते हैं? तो समवेयर वी एज अ सोसाइटी ऑल्सो हैव टू पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू एक्नॉलेज दैट यूएस में आज के दिन फेलियर्स आर सेलिब्रेटेड. इंडिया में एक बहुत बड़ा टैबू है इस चीज़ का कि अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर एक बार फेल किए हो तो शायद आप वापस हिम्मत ही ना करो वापस एंटरप्रेन्योरशिप करने का. बट उल्टे साइड में हम ये भी देखते हैं कि जो ज़्यादा फेल करता है उस लर्निंग की एक जो एडवांटेज है उससे उसकी नेक्स्ट कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा. मैं एक सेकंड आपको रोकूं. हर्ष का एक फलसफा है, इनकी एक फिलॉसफी है, और इनकी फिलॉसफी के हिसाब से हर जो दिन आता है वो या तो आपके लिए कामयाबी, सक्सेस लेकर आता है, या फिर वो आपके लिए सबक, लर्निंग लेकर आता है. फेलियर वाला शब्द मेरे ख्याल से हर्ष की डिक्शनरी में तो है नहीं, और यही आपको लगता है कि स्टार्टअप्स का भी मंत्र होना चाहिए हर्ष? बिल्कुल, स्टार्टअप्स आर एन एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, बट द वे अगर कोई स्टार्टअप नहीं चलती है तो वी शुड नॉट कॉल इट एज अ फेलियर, वी शुड कॉल इट एज अ लर्निंग एंड अ पिवट. So therefore it is very important for us in the society to encourage entrepreneurs. Not only are they creating a lot of new employment and new ideas, but at the same time आज के दिन अगर हमें वर्ल्ड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो startups is one of the only major channels through which you can actually create it at that scale. आपने अपनी जर्नी में किस तरीके का एक शिफ्ट देखा है ये स्टार्टअप्स को लेकर, एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट किस तरीके का आपने देखा? आपका जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है उनकी सोच में भी कुछ शिफ्ट आपको देखा? बिल्कुल. आई कैन रिमेंबर वेरी विविडली जब मैं 2015 को बे एरिया में था, वी वर डूइंग अ ट्रैक ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को. ओके. मैं दूर दूर तक सारे ऑफिसेज में झांकता रहा कि मुझे कहीं तो दिख जाएगा कोई इंडियन स्टार्टअप का लोगो. और ये कौन से साल की बात है? 2015 की बात कर रहा हूँ. 2015. एंड देयर वर ओनली 3. अच्छा. आई विजिटेड 20 ऑफिसेज, देयर वर ओनली 3. लास्ट ईयर मैं वापस गया. गेस व्हाट, हर उस ऑफिस में एटलीस्ट 15 से 20% लोगोस तो इंडियन स्टार्टअप्स के थे. ओह माय गॉड, इसके लिए तो तालियां बजती हैं. एंड ये सब हमारे सामने लास्ट 10 सालों में ही हुआ है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वर्ल्ड भी देख रहा है. इट इज नॉट ओनली दैट इंडिया इज द ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया ट्रूली बिलीव्स दैट अ लॉट ऑफ आइडियाज कैन गेट जर्मिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड कैन बिकम वर्ल्ड बीटिंग. सो समवेयर आज का टाइम ऐसा है कि वर्ल्ड में बहुत अनसर्टेनिटी है. इंडिया इज प्रोबेबली वन ऑफ द ओनली पॉकेट्स जहां आपको बहुत ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिख रही है. और साथ में इंडिया में अगर कोई आइडिया चल जाता है तो हमने बहुत बार देखा है वो आइडिया 2G का 4G बहुत जल्दी बन जाता है. तो वैसा कौन सा एक आइडिया है जो हम क्रिएट कर सकते हैं जो सीधा एक रेवोल्यूशन लाए बट साथ साथ में एक टेक्नोलॉजी ही ओवरलैप कर ले? तो उस तरीके से सारे इंडियंस को भी सोचना चाहिए कि इंडिया इज नॉट इंफीरियर, वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस, वी जस्ट हैव टू बिल्ड ऑन दैट आइडिया एंड टेक इट टू द वर्ल्ड. इसके लिए R&D कितना जरूरी हो जाता है? आपको लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट अभी बहुत जरूरी है और वहां पर क्या हम थोड़ा लैक कर रहे हैं और वहां पर फोकस करने की जरूरत है? क्लियरली R&D इज अ बिग अपॉर्चुनिटी एरिया. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि R&D में हम लैक कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड के बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा के सारे लार्ज R&Ds इंडिया में ही होते हैं. बट R&D हैज़ अ वेरी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. R&D के साथ साथ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलेगी, वो तो होने वाला नहीं है. और साथ में ये चीज़ पर्टिकुलरली हमने देखा है, पर्टिकुलरली अमेरिका में, US में,
कि बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जिनका एक ऐसा लॉन्ग टेन्योर होराइजन रहता है कि वो R&D को जब तक कमर्शलाइज नहीं होता है तब तक वो सपोर्ट करते रहते हैं। तो समवेयर हमें हमारा माइंडसेट थोड़ा सा और इवॉल्व करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत इस चीज़ों का नोटिस लिया है, अभी एक फंड भी क्रिएट किया है फॉर डीप टेक, क्योंकि सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज विल टेक एटलीस्ट अ डेकेड फॉर इट टू फाइनली फाइंड अ प्रैक्टिकल यूज। उसके बाद आपका कमर्शियल होएगा। इस दौरान एंटरप्रेन्योर थोड़ा थक जाता है, थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि उसे उस लेवल की सपोर्ट नहीं मिलती है। तो वैसा अगर हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो आई हैव नो डाउट इन द माइंड दैट R&D कैन बी अ बिग एनेबलर, and we should not only be the R&D centers of global companies, we should be doing a lot of our indigenous R&D as well. देश की बड़ी समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो बेरोजगारी वो बार बार घूम फिर कर चर्चा में आती है। आपको लगता है कि स्टार्टअप्स और एक तरीके से वो सोल्यूशन दे सकता है देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको सुलझाने में? Startups can enable, but startups cannot completely drive that agenda, क्योंकि जो चीज़ several decades से चल रहा है, if startups can deliver, for example, जैसे हम देख रहे हैं आधार का जो टेक्नोलॉजी has been game changing, उसके चलते UPI का एक बहुत बड़ा प्रचलन चालू हुआ ऑथेंटिकेशन का, एंड टुडे आज के दिन कहीं ना कहीं हमें UPI और आधार को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एट अ ग्राउंड लेवल। Perhaps you could argue that उसका रोल ज़्यादा लीकेज कट करने में और कन्वीनियंस के लिए था rather than creating more wealth. However, having said that, उस टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप का निर्माण के चलते आपको वो दिखता हुआ, तो गोइंग फॉरवर्ड हमें ऐसा ज़रूर लगता है कि बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगी, बट वी शुड नॉट बी ओवरली डिपेंडेंट एंड पुट सो मच प्रेशर ऑन द स्टार्टअप, बिकॉज दिस विल रिक्वायर एन एंटायर विलेज एंड अ कंट्री टू एक्चुअली रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सरकार से आपको क्या लगता है कहाँ सपोर्ट की अभी और ज़रूरत है? हालांकि भारत सरकार जो है वो बहुत मदद कर रही है, योजनाएं लेकर आ रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सरकार की हमें नज़र आती है, लेकिन अभी हम जिस स्टेज में हैं और जो हमारा एक गोल है, फिनिश लाइन तो 2047 डेवलप्ड इंडिया है, तो उस लिहाज से और कहाँ नीतिगत बदलाव आपको लगता है कि करना चाहिए? लास्ट डेकेड में गवर्नमेंट ने एक बहुत प्रोएक्टिव पुश किया है टुवर्ड्स स्टार्टअप, एंड अगर आप आज के दिन देखोगे गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, दोनों ने ही बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं। और पर्टिकुलरली आज के दिन हम जब अपने ऑनरेबल मोदी जी का विजन भी देखते हैं ऑफ माइंड टू मार्केट, वेरी एलिक्वेंटली टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि एक आइडिया को आपको मार्केट में कितना जल्दी ले जाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स की तरफ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस और प्रायोरिटी आया है। साथ में हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं अब कि जो बहुत सारे स्टार्टअप्स अब स्केल अप हो चुके हैं या जो एक लार्ज स्केल पे चले गए हैं, कंप्लायंसेस का एक थोड़ा नेक्स्ट दौरान का और सिंप्लीफिकेशन और ईज हो। सो आवर ओनली रिक्वेस्ट वुड बी दैट द ईज ऑफ स्केलिंग अप एंड सिंगल विंडो क्लियरेंसेस फॉर कंपनीज हु क्लियर अ सर्टेन स्टेज, बिकॉज आज के दिन भी यू आर वर्किंग अक्रॉस मेनी डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल्सो वर्किंग विद द सेंटर। अगर यहाँ पे हमें थोड़ा सा और सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली दिस विल बी अ बिग एडेड एडवांटेज टू ऑल कंपनीज हु वांट टू स्केल अप। सपनों का आकाश चाहिए, मतलब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल खुला आकाश चाहिए। बिल्कुल, और वो आकाश बढ़ता रहे। तो अभी कहाँ पर आकर एक कैप सा लग जाता है और फिर वहाँ उसको स्टेज को पार करने में मुश्किल होती है, जो आप कह रहे हैं कि साहब वो स्केल अप करने में और आसानी चाहिए, तो अभी दिक्कत कहाँ आती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिक्कत तो माइंड में पहले चालू होती है। अगर आपके आइडिया में और एज एन एंटरप्रेन्योर आपके आइडिया में आपको उतना भरोसा है, then I don't think anything will stop you necessarily. I think अभी conversation more इस तरफ है कि किस तरीके से हम इसको broad based करें, क्या पॉलिसी सपोर्ट हमें मिले ताकि ये अड़चन जो फ्यूचर में आ सकती है, जिसके लिए हमें शायद और मेहनत करना पड़ता, वो मेहनत करना ना पड़े और वो वाला चीज़ और इजीली हो जाए। आइडिया जो हमारा है वो उसको फाइनल फ्रुक्टिशन तक हम ऐसे भी लेके जाएंगे, बट ये मिल जाए तो और आसान हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो हमारा जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है, व्हाट इज एग्जैक्टली फ्यूलिंग दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम? इज इट इंडिविजुअल पैशन? बहुत सारे कारण हैं जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम को फ्यूल कर रहे हैं। अगर हम बारीकी से देखें, पहला तो ये, इंडिया इज़ वेरी यंग, और जब हम यंग रहते हैं वी कम विद नो इनोवेशंस, वी जस्ट कम विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स कि हमें एक वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। तो इंडिया का यूथ इज़ वन ऑफ द मेजर एनेबलर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड मेजर आपको जो पैशन के बियॉन्ड चाहिए, आपको चाहिए आइडियाज़। आज के दिन अगर आप देखो एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी भारी मात्रा में घूम रहा है।
और इंडिया में बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे हैं जो ग्लोब में कहीं ना कहीं टेस्ट हो गए हैं और इंडिया में आके इंडियनाइज हुए हैं। पहले के टाइम पे आप देखते थे उबर, ओला। सिमिलरली हमने देखा हमारा आइडिया जैसे को वर्किंग का, हमने उसको फ्लिप करके बोल दिया कि को वर्किंग तो बाहर की आइडिया है, इंडिया के लार्ज कंपनीज को मैनेज्ड ऑफिस चाहिए। तो समवेयर यू ऑलवेज हैव टू, एग्जैक्टली, सो यू ऑलवेज हैव टू इंडियनाइज द आइडिया पर से। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच इज हैपेंड इज दैट आज के दिन कैपिटल अवेलेबल हो गई है, क्योंकि पैशन एंड आइडिया कैन ओनली टेक यू टू वन लेवल। आज के दिन वर्ल्ड डिमांड स्पीड एंड स्केल, और आपको स्पीड एंड स्केल विदाउट कैपिटल बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, इंडिया में बहुत सारे वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी है, बट वर्ल्ड ओवर बहुत सारा कैपिटल अब यहाँ पे आ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो ड्राइविंग एंटरप्रेन्योरशिप। और आई एम श्योर आज के दिन जब लोग बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑफ कंपनीज हु हैव IPO'd, हु हैव गॉन पब्लिक, हु हैव गॉन टू द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होता है आज के यूथ को कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो नेटवर्क इफेक्ट जो अब इंडिया में एक चालू हो गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 2047 में वर्ल्ड के जो टॉप 100 स्टार्टअप्स होते हैं, आज के दिन इंडिया के शायद कम नंबर रिप्रेजेंटेशन है, ये नंबर आपको भारी मात्रा से इंडिया में बढ़ते हुए दिखेगा वर्ल्ड में। ये तो हम सब चाहते हैं ऐसा हो, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए। इस शानदार सपने को साकार करने के लिए ये हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली बुनियाद में सब चीज़ के पैसा आ जाता है, फंडिंग है ना, तो जो ग्लोबल फंडिंग है उसको इंडिया के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और अट्रैक्टिव, आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इंडिया ऑलरेडी इज एट अ वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट टुडे, बिकॉज इंडिया में एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इंडिया में वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें एक लेवल ऑफ ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। भले ही बहुत अनसर्टनिटी रहती है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स एक्सेट्रा, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स इंडिया के ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के दिन जब हम बहुत सारे ग्लोबल प्रैक्टिशनर्स, ग्लोबल कंपनी से चर्चा करते हैं रिगार्डिंग इंडिया कि व्हाट कैन वी डू टू मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव, अ फ्यू थीम्स इमर्ज। वन इज दैट there is a high expectation of getting high productivity from Indian employees. So somewhere Indian employees are known to be very hard working, but somewhere जो global companies को एक capital productivity चाहिए, वहाँ पे एक opportunity है of India to continue getting better. And second is of course India बहुत ज़्यादा notice ले रहा है कि किस तरीके से हम अपना policy environment और ज़्यादा congenial करें, क्योंकि आज के दिन जब बाहर की capital आती है वो उस एक्सपेक्टेशन से भी आती है कि वो केवल कैपिटल इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करे, बट वो कैपिटल इंडिया में प्रॉफिट कमा के वापस अपने कंट्री ले जाए ओरिजिनली। तो वो जो इंटायर जर्नी है वो इतना साधारण और इतना इजी नहीं है, एंड दैट जर्नी समटाइम्स टेक्स मोर ईयर्स देन व्हाट इट शुड। तो अगर समवेयर हम आज के दिन जब ग्लोबल कैपिटल फ्लोज का बात करें, सिंगापुर देखे या बहुत सारे ऐसे कंट्रीज देखे, वहाँ पे ये फ्लोज बहुत ज़्यादा ईजी है। सो दैट विल बी ऑब्वियसली वन मोर एक्सपेक्टेशन आई वुड थिंक जो बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज को रहेगा विथ रिगार्ड्स टू व्हाट कैन मेक इंडिया मोर अट्रैक्टिव। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के अंदर कि आप जब चाहें आएं और निकल कर यहाँ से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ कैपिटल फ्लोज। ओके, ईज ऑफ कैपिटल फ्लोज, एग्जैक्टली, ये ज़्यादा स्पेसिफिक आपने बताया। मुझे बताइए, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है, जहाँ से मैंने आज इस बातचीत की शुरुआत की, आपकी जो जर्नी रही है उसमें दिक्कतें कहाँ पर आई और आपने उसको कैसे पार पाया? फंडिंग को लेकर भी आपको प्रॉब्लम आई? विदाउट चैलेंजेस और डिफिकल्टीज देयर इज नो सक्सेस। सो ये तो एक फोरगोन कंक्लूजन है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे उतना ज़्यादा आप लकी भी होगे एंड मोर अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप। एंड देयरफॉर पहले जो एक शब्द था कि परसिवियरेंस, फॉर एन एंटरप्रेन्योर ग्रिट एंड परसिवियरेंस इज सेकंड टू नन। बहुत सारे ऐसे डेज आएंगे जहां आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ योर डेज इन योर अर्ली डेज विल बी हम्बलिंग डेज। एंड वहां पे अगर आज के दिन अपने ये सोचते हैं कि मैं थ्योरी पे बिलीव करता हूं कि डीप रूट्स टॉल ट्रीज। ओके, सो कहीं पे भी हमें वो जो एक शॉर्टकट का एक थॉट प्रोसेस रहता है, अगर आपका रूट जड़ी मजबूत नहीं है तो पेड़ तो लंबा होएगा नहीं। तो हमेशा हमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ पे करनी चाहिए कि हाउ कैन आई बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिकॉज फॉर एनी कंपनी और फॉर एनी इंडिविजुअल हार्ड डेज तो आएंगे, एंड इनफैक्ट हार्ड डेज विल बी मोर देन योर मोर सक्सेसफुल डेज। बट अगर आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बी ऑलवेज एबल टू
traverse any challenge which is there. और somewhere I know आप बहुत, मैं युवा को भी देख रहा हूँ आज के दिन यहाँ पे बैठे हुए, और I have also gone through that entire journey. Somewhere हमारे माइंड में हमेशा ये चीज़ एक रहता है कि I will do this tomorrow, I will do this after a few days, but unfortunately tomorrow is today. तो जब आपने अपना मन बना लिया है, you will have to make it happen because there is no tomorrow. एंड ये जो एक माइंडसेट आपको अंदर से अपना शिफ्ट करके ट्रांसफर करना पड़ता है, वो जो कर पाता है वही रूट है, आई वुड से, ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंड challenges, I can probably write a PhD because since we've scaled up, I think we've only faced a lot of obstacles, but I think turning obstacles into victory is what gives you more energy. और अगर आज के दिन आप ये सोच सकते हो कि 9 साल के टाइम पे एक कंपनी जो एक आइडिया स्टेज पे थी, बाहर की आइडिया को उसने कन्वर्ट करके मैनेज्ड ऑफिस का एक नया कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया. फिर कोविड को हमने ट्रवर्स किया, और कोविड के समय ऑब्वियसली ये भी गारंटीड नहीं था कि कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं. कैपिटल रेस तो दूर की बात, आप सर्वाइव करोगे कि नहीं पता नहीं. और उसके बाद कैपिटल रेस हैड देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस. और वो दौरान देख के आप इंडिया के लार्जेस्ट बने हो और आपने अब इंडिया के पब्लिक मार्केट में लिस्ट किया है. सो इफ इन 9 years we can accomplish this with so many challenges of COVID, market pivot, and being a category leader and taking an idea to the world. अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है. All it requires is grit and perseverance. और अगर आप right time पे right place पे हो तो आप opportunity को convert करोगे. और वो अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है. मतलब हमारे यहाँ तो ऑन अ लाइटर नोट, हमारे यहाँ तो चाइनीज़ भी बिल्कुल देसी अपना अपने अपने हिसाब से, मतलब पंजाब में जब आप चाइनीज़ खाओगे एकदम पंजाबी फ्लेवर वाला, और बंगाल में जब आप खाएंगे तो बड़े ही बंगाली अंदाज वाला चाइनीज़ आपको मिलेगा कि चाइनीज़ भी चकरा जाएं कि कौन सा चाइनीज़ खा रहे हैं हिंदुस्तान में. ये सवाल ये आपने उस हिसाब से अपनी जो वर्क प्लेसेस है उसको तो यहाँ पर अडाप्ट किया. जहाँ से आपने शुरू किया था तब से और अब तक जो आपका वर्क प्लेसेस का एक सिलसिला चला है, उसमें आपने किस तरीके के बदलाव देखे? अब जो कस्टमर्स आपके होते हैं वो आपको बाकायदा कहते हैं कि हमको ऐसा वर्क प्लेस चाहिए, वो डिफाइन करके देते हैं, या अभी भी आपके पास और इनोवेशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं उनको देने के लिए? नहीं, सो हमने आज के दिन हमारा, जैसे आपने बताया, साम्राज्य ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ स्क्वायर फुट, हमने मोर देन 1000 ऑफिसेज डिलीवर कर दिए हैं 800+ कंपनीज को, जो वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज है. सो जो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी हमने अब बिल्ड कर दिया है कि जैसे AI पहले ही महसूस कर लेता है आपको क्या चाहिए, शायद हम भी उस पड़ाव पे अब आ चुके हैं कि थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग डिलीवर्ड मोर देन 1000 ऑफिसेज, वी आर एबल टू प्रिडिक्टिवली असेस, चाहे आप एक बाहर की कंपनी हो, मीडिया की कंपनी हो, या आप एक इंडियन ओल्ड स्टाइल कॉन्ग्लोमरेट हो. So in a way you have fixed templates? So you have fairly standardized templates, but depending on your unique needs, the templates can be customized. Okay. तो standardization is the name of the game, because आप बिना standardization आज के दिन 6 से 9 महीना पहले तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि मेरे को नई ऑफिस चाहिए. हम अपने जब कस्टमर के पास एक प्रस्ताव रखते हैं, हम बोलते हैं हम आपको 60 से 90 दिन में वो ऑफिस दे देंगे. तो बिना टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्डाइजेशन तो आप ये कर ही नहीं सकते हो. बट साथ में हमें जो इस चीज़ की एहसास हुई, अगर यू एज अ यूज़र आर ओवरलोडेड विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विदाउट नोइंग कि किस ऑप्शन की क्या प्रो एंड कॉन है, आप डिसीजन लोगे ही नहीं. So it's a problem of plenty हो जाएगा. तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को आप कैसे स्टैंडर्डाइजेशन से, आपको जो जरूरत है केवल मैं वही दिखाऊं, और आपके मैं नीड को ऐसा असेस करूं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट ना दूं. दैट इज अ बिगर इनोवेशन इन आवर माइंड रादर दैन कंटिन्यूइंग टू इनोवेट ऑन वर्क प्लेस डिजाइन. वो तो थीम्स आती रहेंगी, वो हम वर्ल्ड में जो भी बेस्ट चल रहा है वो हम वी विल फाइंड इट्स वे इन टू इंडिया. हाउएवर इनोवेशन इन मेकिंग श्योर कि आपसे वो डिसीजन हो, और हर चीज़ हम ऐसा स्टैंडर्डाइज करें कि हम आपको वो डिसीजन को 60 से 90 दिन, देखिए 10 मिनट पे तो नहीं होएगा जो क्विक कॉमर्स की वो है, बट 60 से 90 दिन इज ऑल्सो बिग इनोवेशन. एंड इंडिया डिमांड्स इंस्टेंट स्पीड, विच इज़ वेयर वी हैव फाउंड आवर स्वीट स्पॉट. तो आज के दिन अगर हम देखते हैं हमारा जो स्पीड है और आज के दिन हमारा जो स्केल है, अगर ये दोनों को आप कंबाइन करके आपके सामने एट अ वैल्यू प्राइसिंग रखो, क्योंकि इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया इज ऑल्सो वेरी वैल्यू कॉन्शियस, चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन एट द सेम टाइम वी वांट इट एट वैल्यू. तो बाहर आप शायद प्रीमियम देने के लिए तो बाहर आप शायद प्रीमियम देना पसंद करो, बट यहाँ पे आप प्रीमियम दो नहीं. अगर आप ये चीज़ 20% लोअर कॉस्ट में दो और आपके एम्प्लॉयज़ को भी हैप्पी रखो, तो ये कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही, क्योंकि आपका टाइम और मनी चला रहा है, बचा रहा है. आप जो आइडिया लेकर आए वो तो टिपिकल जो इंडियन सेंसिबिलिटीज हैं उसको सूट करने वाला आइडिया था. तो इस लिहाज से क्या आप ये कह सकते हैं कि आपकी शुरुआत कंपैरेटिवली आसान शुरुआत रही?
हमारा शुरुआत इनफैक्ट आई वुड से आसान नहीं रहा। पहले 2 साल तो कोवर्किंग की जो थीम थी वर्ल्ड ओवर काफ़ी चल रही थी। Okay. और वर्ल्ड में जो भी आइडिया चलता है समवेयर फाइंड्स इट्स वे इनटू इंडिया एंड दैट आइडिया क्लिक्ड। बट समवेयर आफ्टर बिल्डिंग स्मार्टवर्क्स फॉर 2 years वी समवेयर रियलाइज्ड कि शायद ये रॉन्ग नंबर हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 75% जो सप्लाई है वो तो अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल है, एक आइडिया अनऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि आज के दिन एक छोटा प्रमोटर है या छोटा लैंडलॉर्ड है, उसके पास एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, वो एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहा है जिसके थ्रू बहुत बड़ी कंपनीज आके वो जगह ले। तो 90% तो डिमांड आपका ऑर्गेनाइज्ड है। तो समवेयर 2 साल सक्सेस करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि छोटे कंपनीज एंड स्मॉल स्टार्टअप्स को हम जो सर्व कर रहे हैं, आइडिया तो अच्छा है बट यहाँ पे अब भारी मात्रा से कंपटीशन आ रहा है। हम यूथ हैं, हम अमेरिका से आए हैं, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना ही पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर नॉट डिस्ट्रप्टिंग देन समवन एल्स विल कम एंड डिस्ट्रप्ट यू। तो वहीं पे इक्वेशन हमारे माइंड में आया कि एक जगह 75% अनऑर्गेनाइज सप्लाई है और दूसरी जगह 90% ऑर्गेनाइज डिमांड है। अगर आप एक स्मार्टवर्क्स का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो जहाँ पे आप ये सप्लाई लाओ, और आज के दिन अगर आप जब ऑफिस बनाते हो आपको अराउंड 25 से 30 सर्विसेज चाहिए, चाहे वो कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, एसी हो, यूटिलिटीज़ हो, हर जन के लिए आपको अलग शहर में अलग कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। अगर आप यही उस कंपनी को जाके बोलो कि हमारे पास बेस्ट ऑफिस सप्लाई है, हमने सारा ऑर्गेनाइज कर दिया ऑफिस सर्विसेज को, और हम 60 से 90 दिन में आपको एक आपका रेडीमेड ऑफिस देंगे जो आप होटल की तरह इस्तेमाल करें, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैप्पी भी रहेंगे इसके साथ। और एक सिटी में आप हमें आजमाएं, उसके बाद आप पैन इंडिया हर जगह हमारे साथ आए, क्योंकि हर जगह आपको वो स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये आइडिया क्लिक कर गया। तो आई वुड से आसान स्टार्ट वुड हैव लेफ्ट टू अ सब ऑप्टिमल एंड। आसान स्टार्ट जिसमें एक ब्रेक लग गया, सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स लग गए, वो बन के फ्लाई कर गया। तो जो भी आसान है, इफ इट इज टू गुड और टू इजी देन यू फॉर श्योर नो इट इज टू गुड टू बी ट्रू। ये तो है। अच्छा, मुझे बताइए कि कोविड वाला जो एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर क्या आपने सबक सीखा? उस दौरान किस तरीके का एक झटका लगा और उसके बाद क्या चेंज किया आपने स्मार्टवर्क्स में कोविड के एक्सपीरियंस से? देखिए, कोविड ने वर्ल्ड ओवर एक भौचाल मचा दिया और इंडिया वाज एब्सोल्युटली राइट एट द कॉर्नर ऑफ वेयर दिस हैपेंड। तो एक तो हमारी लर्निंग है कोविड की और दूसरी लर्निंग है बिजनेस की। मैं दोनों लर्निंग आपके साथ आज के दिन शेयर करता हूँ। Sure. सो कोविड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रेजिलियंस, बिकॉज आपको समवेयर ये पता था कि इट इज गोइंग टू बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हु कैन विथस्टैंड द लॉन्गेस्ट। तो जो भी कोविड का टाइम निकाल दिया, आप देखिए आज के दिन उसका बिजनेस बूम कर रहा है। तो समवेयर जब मैं पहले इस चीज़ की जहन किया कि आपको डीप रूट्स एंड टॉल ट्रीज की फोकस करनी चाहिए, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, बिकॉज बिजनेस साइकिल्स तो आएंगे जाएंगे बट ह्यूमैनिटी विल सुपरसीड ऑल ऑफ दैट। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड में कि हम फाउंडेशन हमारा बहुत स्ट्रांग रखें। सो कोविड के समय वी वर ऑल वेरी हम्बल टू एडमिट कि हमारा बिजनेस मॉडल हैज़ टू नाउ पिवट एंड चेंज। थैंकफुली फॉर अस, क्योंकि हम बड़े एंटरप्राइजेस पे फोकस कर रहे थे कोविड के पहले, एंटरप्राइजेस उस समय तक हमारे साथ ग्रो करते रहे और पैसे देते रहे, तो हमारे बिजनेस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट हैड वी नॉट मेड दैट पिवट एंड हैड वी नॉट बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वी वुड हैव रियली स्ट्रगल्ड ड्यूरिंग कोविड। एंड सेकेंड चीज विच आई नो इज स्लाइटली अनपॉपुलर इन टाइम्स लाइक दीज, बिकॉज समवेयर हमारा एक डेफिनेशन स्टार्टअप का ये भी है कि स्टार्टअप अगर हमें करना है तो हमें स्टार्टअप के लिए बहुत कैपिटल चाहिए, हमें बहुत फंडिंग चाहिए। समवेयर हमें हमारा वोकैबुलरी चेंज करना पड़ेगा। आज के दिन सुपर पावर वही स्टार्टअप है जो अपने खुद के रुपए से स्केल कर सकता है, जिसकी कैश फ्लो एंड यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देन यू आर इन द ड्राइवर सीट डिसाइडिंग द डेस्टिनी ऑफ योर कंपनी रादर देन ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कैपिटल। और कोविड टॉट दैट टू अस इन अनइक्विवोकल वेज कि कैपिटल रेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट अगर आप अपने बिजनेस को इतना मजबूत बना दो कि आपका फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, which I hope and is my desire also for the new age companies which emerge in India, आप फंडिंग तो सेलिब्रेट करिए बट साथ में आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो को और सेलिब्रेट करिए, क्योंकि उससे बहुत एक प्रोत्साहन मिलेगा। एंड कोविड में दिस वाज आवर बिगेस्ट लर्निंग। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब जो हमारा इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स वाला दुनिया में, तो वो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है यूएस चाइना के बाद। ऐसे में जो नए उद्यमी हैं और जो 2047 इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें जो कंट्रीब्यूट करने चाहते हैं,
चलते चलते उनके लिए बस आपकी तरफ से एक मंत्र। आई कैन सी ऑन द बोर्ड द टाइम्स अप, बट क्लियरली इंडिया का टाइम अप नहीं हुआ है। 2026 में अगर हम आज के दिन इंडिया के नंबर 3 बन गए हैं, हाँ। तो 20 साल में तो आप इमेजिन कर लीजिए हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ ये कितना बड़ा हो सकता है। तो लेट अस जस्ट कंटिन्यू बीइंग एट इट। इंडिया विल होपफुली इन 2047 क्लाइंब अप दैट लैडर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू सो Thank मच you. इस इंस्पिरेशनल बातचीत के। हर्ष जी चाहेंगे कि आप एक मिनट मंच पर रुकें और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा एबीपी नेटवर्क के सीईओ सौरभ याग्निक जी का। आप कृपया मंच पर आएं और हर्ष जी को सम्मानित करें। तो इंडिया एट 2047 कॉन्क्लेव में हम बात कर रहे हैं भारत के विकास की, और एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी का, जो हमारे बीच आ चुके हैं। हनुमान चिराग पासवान, ये सब तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आजकल चिराग पासवान नीतीश कुमार जी के खास शागिर्द भी बन गए हैं। अब ऐसा है कि सिर्फ 5 साल पहले नीतीश जी की सरकार हिलाने में लगे हुए थे चिराग पासवान, आजकल नीतीश जी की सरकार को सीमेंट की तरह मजबूती दे रहे हैं बिहार में। तो दिल में मोदी जी को बसाकर और हाथ में नीतीश जी का साथ थामकर चिराग नए अवतार में नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी एबीपी प्लेटफॉर्म पे चिराग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको बिहार चुनाव के रिजल्ट्स के बाद पहली बार मिल रही हूँ, तो नेचुरल है कि मैं बिहार से ही शुरू करने वाली हूँ। आपको ये अंदाजा तो हो ही गया। मुझे भी इस मुलाकात का इंतजार था। मुझे क्योंकि पता है प्रचार के दौरान कई सवाल मुझ पे उठाए गए थे, उनके जवाब लेकर आया हूँ। मौका दूंगी चिराग, आज मौका दूंगी आपको जो दिल में है दबा कर रखे हैं, आज कहिएगा जरूर। लेकिन शुरुआत इस बात से करना चाहूंगी कि इतनी बड़ी जीत आप लोगों की हुई, ये तो आपने भी नहीं सोची थी। अमित शाह जी ने भी 160 का ही आंकड़ा दिया था, चिराग ने भी ये नहीं सोचा था कि 200 पार हो जाएगा। तो 10,000 का कमाल रहा है ये चिराग। आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं इस ऐतिहासिक जीत की ओर। एक बात जो मैंने शुरू से मानी और मैंने कही दैट ये 5 दलों का जो कॉम्बिनेशन था, ये एक अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन था। द काइंड ऑफ अलायंस दैट वी हैड, 5 पांडव की तरह जो हम लोग कहते भी थे चुनाव प्रचार में कि हम लोग उतरे हैं, तो ये इन टर्म्स ऑफ समीकरण ये अपने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस था। मैं ये मानता था शुरू से कि इस अलायंस के सामने विपक्ष का ठहरना मुश्किल है, और मेरे पास कारण थे अपनी इस बात को मानने के। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2005 के बाद बिहार का जो एक बड़ा क्षेत्रीय दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसका पूरी तरीके से सफाया हो गया है। जिस जंगल राज का हम लोग जिक्र करते थे, वो 2005 में ही उस पार्टी को, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने परमानेंटली नकार दिया है। 2010 में हम लोगों ने इसको दोबारा देखा बिहार विधानसभा के चुनाव में कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलायंस को करारी शिकस्त हासिल हुई। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल और उनके अलायंस को एक जीवन दान मिला।